Hello everyone, my name is Siddharth Panda. Welcome to OPSC Study. Today we are going to discuss OPSC Preliminary Test Series 2024, Sectional Test 2, Polity Test 2. So without wasting any time, let's start with question number 1. So here, question number 1. Consider the following statement with reference to the election of Chief Minister. According to Article 164, the government of a state appoints the governor of the state appoints the chief minister. The governor appoints the other minister on the advice of chief minister. Which of the following statement are correct? So both the statements here are correct. दुईटा को statement ठीक अच्छी. See, chief minister रो appointment पे एमिति किसी specific procedure constitution रे mention नहीं. So governor the largest majority party जी जीती थी वो election मेजोरिटी पार्टी रो लीडर ऑफ द पार्टी को चीफ मिनिस्टर हिसाब रे से अपॉइंट करि थांती एवं चीफ मिनिस्टर रो एडवाइस रे से बाकी मिनिस्टर मान को मध्ये अपॉइंट करि थांती. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सी मु बार बार कहिची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो क्वेश्चन आसे. In the previous test number 1 मध्ये हमें डिस्कस करथिले रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अगेन इट देखंतु स्टेटमेंट 1. द फर्स्ट हिस्टोरिकल सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स मीटिंग ऑन 9th of December 1946 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. यस, 9th of December 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग हेथिला. फर्स्ट मीटिंग रो चेयरमैन किए थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली. सो मन रखि थांतु 2 दिन परे 11th December 1946 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन एंड एससी मुखर्जी वाज द वाइस चेयरमैन एवं डॉक्टर बीएन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हिसाब रे इलेक्ट करा जाइथिला. There were 9 members from Odisha and 299 members of the Constituent Assembly. अच्छा, this is also correct, but एठी क्वेश्चन आसे कि 299 members केंति कहूची सर. प्रीवियस क्लास रे तो आमे जानी थिले there were 389 members total थिले जोठो कि 296 members एवं 93 members. 296 members were from the governor governor presidencies and 93 जोड़ा थिले they were from the princely states through elected nominated ही किया थिले. So मन रखितांतु after the government of India Act 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस हला परे पाकिस्तान अलगा ही थिला. पाकिस्तान अलगा हला परे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टोटल 299 मेंबर थिले. 299 मेंबर रु गवर्नर प्रेसिडेंसी गवर्नर प्रोविंसेस रु केते जण थिले ना सेटा थिले 229 एवं प्रिंसली स्टेट्स रु थिले 70. तो टोटल 299. तो सेठी कहूची कि देयर वर 9 मेंबर्स फ्रॉम द ओडिशा रु 9 जण मेंबर थिले. यस, तो ऑप्शन आंसर इज सी. सो यू कैन सी विचिन्नारायण दास, विश्वनाथ दास, कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव, हरे कृष्ण महताब, लक्ष्मी नारायण साहू, लोकनाथ मिश्र, नंदकिशोर दास, राजकृष्ण बोस, शांतनु कुमार दास. These are the 9 members from Odisha. Question number 3. Consider the following statement with reference to the Lokayukt. Okay, Lokayukt कौन है? Lokayukt is an independent anti-corruption ombudsman. ठीक अच्छी, this is correct. तो मन रखतांतु कि जेंती सेंटर रे लोकपाल अच्छी सेंती स्टेट रे किए थांते ombudsman, anti-corruption ombudsman, that is called Lokayukta. Next, the body of the Lokayukta has been established with effect from 2019 in Odisha. This is also correct. Odisha has enacted Lokayukta Act of 2014 एवं से अनुसार the body of Lokayukta has been established in 2019. Now another additional information is that कि Lokayukta को appoint किए करंती, appoint करथांती मन रखिथांतु गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन with the Chief Justice of High Court एवं leader of the opposition in the state legislative assembly. Is the Lokayukta जे थिबे से कोन सेकंड टर्म पई एलिजिबल? नो, मन रखिथांतु Lokayukta is not eligible for the second term. Next, go to question number 4. Consider Lokayukta is an independent. Same question टा रिपीट ही जाइची. तो मन रखिथांतु वर्तमान करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकायुक्त किए ना अजय मानिक राव
Khanwilkar. Question number 5. Consider the following statement with reference to Panchayati Raj institution in Odisha. For the first time, Odisha Gram Panchayat Act was passed in 1959. This is wrong. This is 1948. This is 1948. In the year 1961, three-tier system of Panchayati Raj institution was introduced in Odisha after Mehta committee recommendation. Ko Mehta? This is Balwant Mehta committee recommendation re three-tier Panchayati Raj system Odisha re 1961 re introduce kara jaithila. Who was the first state to introduce the three-tier Panchayati Raj system? It is Rajasthan. मन रखिथांतु Rajasthan was the first state 1961 that is 1959 এবং 1961 रे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टा इंट्रोड्यूस कराइतला ओडिसा रे थ्री टायर टा आफ्टर बलवंत मेहता कमिटी रिकमेंडेशन रे. सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट. Question number 6. Consider the following statement with reference to the 73rd constitutional amendment Indian Constitution. 73rd constitutional amendment 1992 ta with came into force with effect from WEF with effect from 24th April 1993. Inserted part IX. Yes, 73rd constitutional amendment act कौन करथिला ना, it give constitutional status to the Panchayati Raj institution. मन रखिथांतु तो पंचायती राज तो it inserted part IX in the constitution, article 243, article 243 to 243 O ये जाए होचे आपनकर पंचायती राज institutions articles. Next, it inserted part IX in the constitution. That is correct. So both the statements are correct. I would also introduce what 11th schedule. 11th schedule मन रखिथांतु केतेडा आइटम्स अछि फंक्शनल आइटम्स ऊपर 11th schedule कहूची ना 29 फंक्शनल आइटम्स मन रखिथांतु 29 functional items of the Panchayati Raj institutions. Question number 6 is over. Let's go to question number 7. Here देखो से समान क्वेश्चन दला. 11th schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992 and has 29 matters. This is correct. Then again, 73rd Constitutional Amendment Act talks about direct election of all the seats except the chairperson at district and block level. Yes, this is also correct. मन रखिथांतु कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एवं ब्लॉक लेवल रे जो चेयरपर्सन अछंती दे वर इलेक्टेड among its members मान को मध्य रे इलेक्टेड हितांती ताकू छाडी की बाकी समस्त जो आपनकर विलेज लेवल रे ही गला, ब्लॉक लेवल रे ही गला, डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जो बाकी वार्ड मेंबर्स माने अछंती, काउंसिलर्स माने अछंती से माने इलेक्टेड होंती डायरेक्टली. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. तो ऑप्शन इज सी. ये पूरा देइछि देखंतु 29 आइटम्स एटी मेंशन अछि. सी एई टेस्ट सीरीज रे कंप्लीटली प्रत्येक जिंसर इंफॉर्मेशन आपन को दिया हिछि. सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि बार बार प्रैक्टिस करंतु, थोरोली पढी कि आसंतु. नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस. प्रत्येक जिंस लक्ष्मीकांत रे प्रोवाइडेड अछि. किछिटा छोटिया मोटिया करंट अफेयर्स अछि जोटा आपन को एठी कवर हेइ जिवो. सो आपन थोरोली लक्ष्मीकांत पढी कि आसंतु, टेस्ट दियंतु, डिस्कशन रे पार्टिसिपेट करंतु. नेक्स्ट देखंतु ओडिसा रिलेटेड क्वेश्चन अछि. लैंड रिफॉर्म्स इन ओडिसा कोटा भितर इनकरेक्ट पेयर कहूची. सो भल से सब बळे एग्जाम रे देखिबे करेक्ट पेयर और इनकरेक्ट पेयर. सो एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम 1950, दिस इज करेक्ट. सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड लैंड कंसोलिडेशन, दिस इज रॉन्ग. दिस इज 1960s to 1970s मन रखितांतु. डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, दिस इज 2008. and Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013. This is also correct. So answer is B. कोटा रॉन्ग थिला एटा जो 1960s 1970s रे. क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. सी देखंतु दुईटा एक टेस्ट रे बार बार इलेक्शन कमिशन क्वेश्चन दिया होची. ता माने होची एज इलेक्शन ए वर्षर हॉट टॉपिक कोन इलेक्शन अछि, तो इलेक्शन कमिशन विषय रे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विषय रे, सब जिंस विषय आपन को जानिबा को पड़िबो थोरोली. इलेक्शन कमिशन आर्टिकल, इलेक्शन कमिशन को पावर को आर्टिकल में मिलता है, दैट इज आर्टिकल 324. मन रखि थान तो आर्टिकल 324. हाउ मेनी इलेक्शन कमिश्नर्स आर देयर? One chief election commissioner plus 2 additional election commissioners.
Election Commission in India is a statutory body established on 25th of January 1950. Partial information is right. 25th of January 1950 रे established ହେଇଥିଲା. This is correct, but it is not a statutory body but a constitutional body. Article 324 Constitution, it's a constitutional body. Originally the commission had only one chief election commissioner. मन रखिथंतु up to 1993 जाए there is only one chief election commissioner. 1993 ru the practice of additional two election commissioner were also there. मन रखिथंतु. So कौन होगा? This is only option B. Let's move to question number 10. Which of the following statement is valid regarding the office of the whip? अच्छा मन रखिथंतु whip कौन ना जदि आपण देखिबे ग्रामर रे देखिबे इंग्लिश वर्ड रे देखिबे व्हिप मींस चाबुक. तो पॉलिटिक्स रे चाबुक कोन ना? पॉलिटिक्स रे व्हिप इज द रिटन ऑर्डर. गोटे रिटन ऑर्डर जोटा कि व्हिप रो पोजीशन रे जने व्यक्ति थाए जे कोटे रिटन ऑर्डर दिए टू गेट ऑल द पार्टी मेंबर्स इन लाइन. कि व्हिप रो काम होची कि से समस्त जो पार्टी रो समस्त मेंबर्स माननकु पार्टी रो आइडिया रे ही परिचालित करिवे. जदि पार्टी कहबो एई जिंस रे वोट दियो तो वोट देबे. पार्टी कहबो एई जिंस रो अब्सटेन रहो वोट दियोनी माने से माने देबे नाही. आजि पार्लियामेंट रे समस्त को प्रेजेंट हवार अछि. जदि पार्टी कहूची ताले सब मेंबर आसीबे. मन रखिथांतु जदि व्हिप रो आदेश को डिफाइन्स करा जाय मना कर जदि न मानंती then it amounts to anti defection. It amounts to defection. So defection को जीवो एवं anti defection law टा then apply हबो. So although not mentioned in the constitution, the office of the which has however been incorporated in the rule of the house by the leaders and chief whips of recognized party and groups in the Parliament Act 1998, and now it is mentioned in the constitution. Neither it is mentioned in the constitution nor in the any rules of the house. मन रखिथांतु it is whip टा कोठी मध्ये mention नहीं. So it's a parliamentary मतलब parliament रो गोटे innovation. This is a innovation of the parliament. The role of the chief whip of the government party in the Lok Sabha is served by the Minister of State for Parliamentary Affairs. This is correct. Which of the following statement is valid? Okay, this is correct. Now, all the political parties, whether ruling or opposition, will have their own whips in the parliament. Definitely, मन रखिथांतु प्रत्येक political party रो गोटे whip थाए आउ गोटे chief whip थांती एवं ताकू support करिया पई additional whips माने मध्य थांती. The chief whip is not responsible to the leader of the house but is responsible only to the leader of the party. Now, this is wrong. Chief whip is responsible both to the party leader as well as the leader of the house. एटा मन रखिथांतु. So एठी आंसर हे जिवो आपनकर 2 and 3 is correct. 2 and 3 is correct. So the role of the chief whip of the government party in Lok Sabha is served by the Minister of the State for Parliament. अच्छा एटी सॉरी गोटे जिनस एटी भूल हे गला कि एटी के जस्ट भूल देखंतु एई सामान्य जिनस भूल पाई कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स नो ओनली मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉट स्टेट. मिनिस्टर ऑफ स्टेट नो ओनली जो कैबिनेट मिनिस्टर थिबे पार्लियामेंट्री अफेयर्स रो सो या यूनियन मिनिस्टर थिबे सेही ही चीफ व्हिप ऑफ द गवर्नमेंट मन रखतांतु नॉट मिनिस्टर ऑफ स्टेट. तो दिस इज रॉन्ग. तो से अनुसार ओनली 3 इज करेक्ट. नाउ we will move to question number 11. Consider the following statement with reference to the by-election in India. By-election केते बेले हुए इंडिया रे whenever there is a seat जते बड़े seat vacant ही जाए due to the death of the member of the parliament or a member of the state legislative assembly या फिर तारो disqualification of the member or resignation of member जदि होई जाए ताहले से 5 वर्ष टर्म भितर जदि से सीट टा खाली हो जाए देन से जगह रे बाय इलेक्शन हुए. बाय इलेक्शन इज नॉर्मली हेल्ड विदिन 6 मंथ्स. केबे हुए से वैकेंसी रा विदिन 6 मंथ्स रे. दिस इज correct. However, no by-election is held where the vacancy is for less than 1 year. मन रखिथांतु कि जदि नेक्स्ट इलेक्शन को
जदि नेक्स्ट इलेक्शन आगो को हबार अछि आ सीट जदि सेही लास्ट 1 ईयर रे जदि खाली होची ताले सेठी किछि इलेक्शन हबो नाही सो बोथ द आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज सी now the by election is normally held within 6 months however no by election is held where the vacancy is for less than 1 year because 1 year भितर जदि vacancy होची the next to general election हबारी होची तो सेति भाई अगेन बाय इलेक्शन से जगह हुए नाही with reference to the post in secretariat to the parliament of the parliament which of the following statement is correct now so मन रखता तो common post may be created for the secretariat of each house of parliament मन रखता प्रत्येक पार्लियामेंट रो लोकसभा राज्यसभा प्रत्येक रो निज निजर सेक्रेटारिएट रहिबो किंतु दरकार पड़िले कॉमन पोस्ट मध्य बहुत लोकसभा और राज्यसभा पे किछिटा सेक्रेटारिएट रो कॉमन पोस्ट मध्य रही पारिबो दिस इज करेक्ट पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटारिएट स्टाफ ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ इट पार्लियामेंट हैज द राइट so this is also correct मन रखिथांतु द फर्स्ट टाइम जो सेक्रेटारिएट इन द पार्लियामेंट ये आइडियाटा किए देथिले ना विठल भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल रो भाई जे थिले विठल भाई पटेल से देथिले इन 1925 विठल भाई पटेल किए थिले ना फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन 1925 विठल भाई पटेल अच्छा सेक्रेटारिएट रो चीफ किए थांती ना सेक्रेटारिएट जनरल मन रखिथांतु सेक्रेटारिएट रो हेड किए थांती सेक्रेटारिएट जनरल तो केतेटा सेक्रेटारिएट जनरल थिबे ना दुईटा सेक्रेटारिएट जनरल थिबे फॉर ए लोकसभा फॉर वन फॉर राज्यसभा मन रखिथांतु ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13 the resignation letter by a judge of supreme court is addressed to very simple question कहा को लिखि के देबे to the president okay next come to question number 14 consider the following statement with refers to the supreme court has original appellate and advisory jurisdiction this is correct advisory jurisdiction achi read jurisdiction achi appellate jurisdiction achi you know supreme court can be a court of record bhi hame कहू छु yes so advisory jurisdiction article kete advisory jurisdiction hoche article 143 मन रखिथांतु article 143 its exclusive original jurisdiction extends to only dispute between the government of India and one or more states देखो एठी बेले बेले पॉलिटी जो क्वेश्चन था केते टर्म आपन को मन रख पड़ो जो ओनली देछि तो यू बिकम सतर्क हिजिबे से जगह रे बार बार सतर्क हिजिबे कि एठी कोन ओनली डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स नो इट हबो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स कॉमा India, government of India plus some states in one side versus some other states in another side eta मध्ये हे परिबो or dispute between different states only not government of India but between different states ए केस रे exclusive original jurisdiction तो exclusive jurisdiction कोन ना only the rights of the supreme court only ए सब केस रो के जजमेंट दे परिबो या के डील करिवो सब केस को exclusive to the only supreme court of India original jurisdiction कोन means directly go to the supreme court not by the way of appeal न करी की डायरेक्ट ए केस ता डायरेक्ट अपन सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबे this is original jurisdiction next come to question number 15 consider the following statement with reference to the high court there are 25 high courts in the country yes this is correct 5 having jurisdiction over more than one state no तीनिटा अछि जहार jurisdiction more than one state को तीनिटा अछि कहि परिबे गोटे होछि पंजाब एंड हरियाणा वन गोटे होछि आपनकर गुवाहाटी रे जो हाई कोर्ट अछि सेटा आपनकर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड दैट इज मिजोरम एंड आसाम चारटा स्टेट को सेटा सर्व करूछि एंड नेक्स्ट होछि आपनकर कोन एमंग तो आउटे कोन अछि गोटे हेगला आपनकर पंजाब हरियाणा गोटे हेगला आपनकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रे गुवाहाटी रे जोटा अछि आपनकर 3 नंबर टा हेगला कोन ना बॉम्बे एंड गोवा को जोटा बॉम्बे हाई कोर्ट टा सर्व करूची बट महाराष्ट्र एंड गोवा को दैट इज द थर्ड हाई कोर्ट सो तीनटा अछि नेक्स्ट अमंग द यूनियन टेरिटरीज दिल्ली हैज a high court of their own at present no this is also wrong
not only Delhi, Jammu Kashmir and Ladakh has also a high court of their own. So question number 15 ta D, neither 1 and 2. Next on to question number 16. Consider the following statement. Copyright Act 1957 provides copyright protection in India. This is correct. देखो बहुत static question टा एटा किछि नहीं. Copyright Act of 1957 copyright protection by India रे अछि. India is a signatory of the Berne Convention for the protection of literary artistic works 1886. যদি আপন কিছু বুক লেখুচন্তি original ଅଛି କିଛି artistic work ଅଛି आपनकर that must be protected by the IPR intellectual property rights under this सेटा कोन हवा दरकार protected हवा दरकार. This is also correct and एटा केंती एटा कहा द्वारा स्थिर होइछि through Berne Convention. This is both 1 and 2 is correct. 16 सरला. Question number 17. Which of the following taxes are levied by the center but collected and appropriated by the state? Article 268. मन रखिथांतु बहुत सिंपल क्वेश्चन टा अछि कि गोटे टैक्स अछि जोटा सेंटर लेवी करूची बट कलेक्ट आउ यूज करूची किए सेटा होची असाइन टू द स्टेट कलेक्टेड बाय द स्टेट. मन रखिथांतु एंती दुईटा ही टैक्सेस अछि. दैट इज वन इज योर स्टैम्प ड्यूटी, सेकंड होची आपनकर excise duty on medical and medical apparatus उपरे आपनकर जो excise duty लागुची. तो एठी tax on sales of goods in the course of interstate trade जोटा अछि. interstate trade रे कोन हुए ना tax is levied by the center, tax is collected by the center but assigned to the states. cess कोन cess is tax on a tax. Land revenue तो मन रखिथांतु is a state subject, so it is collected, levied, assigned by the state only. Tolls मध्य कोन ना tolls टा आपनकर collected and levied by the state only. तो it is neither or none of these आछि. तो कोटा जोटा सेंटर लेवी करूची but collect और appropriated by the state is stamp duty गोटे कहली and excise on medicinal and toilet treatments. ए दुईटा मन रखिथांतु जोटा कि आपनकर collect करूची आपनकर state but levy करूची किए ना center. Next, we will deichi tolls kono, land revenue kono. So the minister of the union shall hold office during the pleasure of whom? President. Article 75. He, all the minister holds the office during the pleasure of the president. जदि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करिवे प्रेसिडेंट को कि ए मिनिस्टर को रिमूव कर दियो ताहले प्रेसिडेंट से मिनिस्टर को से रिमूव कर दे परिवे एंड दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट एट क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following is incorrect with reference to the citizen charter? Incorrect कोटा कहूची citizen charter रे incorrect कोटा कहूची. ओके अच्छा citizen charter टा कौन? citizen charter होची it's a document जोटा कि आपन को प्रोवाइड करूची. कौन प्रोवाइड करूची ना ऑर्गेनाइजेशन केंति की सिटीजन मान को सर्विस प्रोवाइड करिवे, केंति की से मान को इंफॉर्मेशन देबे, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. ए सब जिंस जोटा लिखा है दैट इज सिटीजन चार्टर. दिस इज फॉर अ गुड गवर्नेंस माय सिटीजन चार्टर इज वेरी मच इंपोर्टेंट. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज टास्क्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ सिटीजन चार्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट. नो. मिनिस्टर ऑफ पर्सनल ट्रिपल पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस आपनकर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और ट्रेनिंग जोटा अछि. तो सही जो आपनकर मिनिस्ट्री अछि दैट इज रेस्पोंसिबल फॉर द सिटीजन चार्टर. इट इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल. यस एटा एनफोर्सेबल नुहो, एटा लीगली एनफोर्सेबल नुहो. दिस इज करेक्ट. It stipulates the responsibilities of the citizens towards the organization's charter. This is also correct. It includes the standards of service delivery. This is also correct. So my first statement 1 is only wrong. So ये गोटे डिटेल्स देइछि आपन कुछ सिटीजन चार्टर ऊपर आपन पढी देई परिबे. तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन जोटा अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज रेस्पोंसिबल फॉर द सिटीजन चार्टर. Next, we will come to question number 20. Disputes arising out of the election of the vice president shall be decided by. जदि प्रेसिडेंट मन कितंतो प्रेसिडेंट किंबा वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन ऊपर जदि किछि डिस्प्यूट आसिला
ताको किए देखिबो ना सुप्रीम कोर्ट एटा सुप्रीम कोर्ट देखिबो किंतु आउ जिंस मन रखि थांतु if the dispute is regarding the absence or the absence of members in the collegium जदि collegium पूरा हेनी आ एटा जदि मैटर अछि collegium पूरा हेनी तो इलेक्शन टा हमें इनवैलिड कहिबा तो नो एटा आपण ए केस रे इनवैलिड हबो नाही बट अदर किछि डिस्प्यूट जदि अछि रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट देन से केस टा सुप्रीम कोर्ट पाखो को जिवो मन रखता नेक्स्ट लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो वकील राइट with reference to attorney general of India article 76 which of the following statement is correct article 76 which attorney general of India a person is appointed as the attorney general who is qualified to be appointed as a judge of supreme court this is correct judge of supreme court ro qualification kono judge of supreme court ro qualification hochi ki he should be a citizen of India then supreme court judge haba pai at least he should be 5 years जज होइतिबा दरकार हाईकोर्ट रे किंबा 5 इयर्स हाईकोर्ट रो जज होइतिबा दरकार 10 इयर्स हाईकोर्ट रे कोन होइतिबा दरकार ना एडवोकेट होइतिबा दरकार और ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होइतिबा दरकार इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट रो आखिरे सोटे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होइतिबा दरकार नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल कैन रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट no there is no procedure mentioned in the constitution regarding the removal of attorney general can remove see attorney general is holding the office during the pleasure of the president माने president को कोई भी टाइम रे रिमूव करि परिबे और जते बेले गवर्नमेंट रिजाइन दिए ता सहित अटॉर्नी जनरल मध्ये रिजाइन दियंती कोनोसी स्पेसिफिक प्रोसीजर नाही मन रखि थांतु in the last test also discuss this आर्टिकल 324 इलेक्शन विषय कहूची आर्टिकल 324 कोन ना पावर ऑफ द इलेक्शन कमिशन पावर conferred under article 324 is subjected to limitation when parliament or any state legislature has made a valid law relating to or in connection with the election मन रखतांतु कि पावर जोटा आर्टिकल 324 अंडर रे पावर जोटा अछि इलेक्शन कमिशन को that can be subject to limitation किछि लिमिटेशन सेट रे आसी परिबो if जदि पार्लियामेंट गोटे किछि वैलिड लॉ बनाए रिगार्डिंग दिस तो इलेक्शन को नहीं कि जदि पार्लियामेंट किछि वैलिड लॉ बनाए ताले सेटा पावर ऑफ द इलेक्शन कमिशन को कटेल कर देई पारिबो यस वर्तमान इलेक्शन कमिशन पई गोटे बिल पास हेतला गोटे पास हिची वर्तमान आसीची ना बिल टा आसीची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ रु आपण देखि परिबे सेटा while exercising the power the election commission shall conform to the rule of law and amenable to the norms of natural justice this is also correct so question number 22 is both C both 1 and 2 consider the following statement about speaker देखो speaker steps out of his office immediately after the house is dissolved this is wrong मन रखिथांतु speaker steps out of the office immediately after the new before the new एटे मन रखिथ एतिकी ठीक अछि एटो मु काटि दउछि तो केते बेले स्पीकर्स रिजाइन दियंती या ऑफिस रु बाहरी जांदे जेते बेले कि बिफोर द न्यू मीटिंग ऑफ द लोकसभा रो जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा अछि तार फर्स्ट मीटिंग रो पूर्व रु ही से ऑफिस रु बाहरंती ता माने जदियो गवर्नमेंट लोकसभा डिसॉल्व हे गला देन आल्सो स्पीकर रो पोजीशन टा डिसॉल्व होए नाही या स्पीकर स्टेप आउट करंती नाही निज पोजीशन रु नुआ जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड हबो से नुआ लोकसभा रो फर्स्ट मीटिंग बिफोर ही से स्टेप आउट करिवे स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिजाइंस बाय राइटिंग रेजिग्नेशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट नो टू द डेप्यूटी स्पीकर को से लिखि की देबे डेप्यूटी स्पीकर को से लिखि की देबे डीएस डेप्यूटी स्पीकर को अच्छा स्पीकर रिलेटेड आउट क्वेश्चन पचारु कि स्पीकर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट केते ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट केते आछि स्पीकर ना स्पीकर देखंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पीकर आछंती आपनकर 7th नंबर पोजीशन रे सेमन आछंती फर्स्ट रे कि आछंती ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स रे दैट इज प्रेसिडेंट आछंती देन देयर इज वाइस प्रेसिडेंट आछंती देन प्राइम मिनिस्टर आछंती प्राइम मिनिस्टर पर दैट इज गवर्नर आछंती देन फॉर्मर प्रेसिडेंट आछंती 5 रे 6 नंबर रे आपनकर आछंती
डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अछंती एवं 7 नंबर अछंती हमकर सीजीआई एंड स्पीकर। तो आउट जिन हम रखंतु स्पीकर जी अछंती से ऑटोमेटिकली द चेयरमैन ऑफ कोको कमिटी रो से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द रूल्स कमिटी देन जनरल पर्पस कमिटी हे गला एवं आउट को कमिटी ना बिजनेस एडवाइजरी कमिटी तीनटा कमिटी अछि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी देयर इज रूल्स कमिटी हे गला आउट हे गला आपनकर जनरल पर्पस कमिटी ये तीनटा कमिटी रो से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ठीक अछि। Next, we will go to question number 24. With regards to the interstate trade, consider the following statement. Trade restriction can be imposed by parliament to safeguard the public interest. This is correct. Trade restriction he paribo to safeguard the public interest. State legislature cannot impose reasonable restriction on the freedom afforded by Article 301. This is wrong. State legislature also can impose reasonable restriction. मन रखिथांतु तो A is only correct. Statement 2 देखंतु state legislature can impose reasonable restriction on the freedom afforded by Article 301 to safeguard the public interest. A bill for this purpose can be introduced in the legislature only after prior recommendation of the president. मन रखिथांतु. So next is the minister of the union shall hold office during the pleasure of president. हम कहिथिले आगु डिस्कस ऑलरेडी दैट आर्टिकल 75 talks about he they holds office during the pleasure of president. Next 26. Which of the following statement is correct regarding the budgetary process in the Parliament of India? Budget Article 112. थोड़ा मन रखिथांतु बजेट टा को आर्टिकल अंडर आछि आर्टिकल 1, 1 and 2. The vote on account is generally granted for 3 months for an amount equivalent to 1/6 of the total estimation. मन रखिथांतु व्हाट इज vote on account ना vote on account टा कोन ना देखंतु तो आपनकर बजेट टा सबले दिया जाए इन द लास्ट डे ऑफ आपनकर फेब्रुआरी लास्ट डे रे नॉर्मली दिया जाए एवं आपनकर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुए आपनकर मार्च 31 रे एप्रिल 1 रो नुवा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुए तो जते बेले आपनकर बजेट टा पेश करा जाए पार्लियामेंट रे सो जते आपनकर वोट्स ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स तो एई जो पूरा बजेट टा पास हेबारे अराउंड 1 मंथ ऊपर लागि जाए डिबेट डिस्कशन है की सो एई दैट मींस अप टू एप्रिल लास्ट जाए पर्यंत आपनकर पूरा बजेट पास हो एप्रिल लास्ट हे जाए तो से टाइम पीरियड भितर गवर्नमेंट रो बहुत सारा खर्चा अछि किछि एक्सपेंडिचर्स अछि से एक्सपेंडिचर को पूरा करिया पई गवर्नमेंट कोन करे ना किछि अमाउंट रो पैसाटा से काढी थाए फ्रॉम वेयर ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो दिस इज कॉल्ड वोट ऑन अकाउंट तो केते मास रो पैसा काढी थाए इक्विवेलेंट टू 1/6 of the total estimation for a limited period तो केते मास पई सेटा ग्रांट करा जाय था not 3 months but for 2 months मन this is called vote on account. After that once पूरा बजेट पास हला पर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो पूरा पैसा धीरे धीरे से माने काढिबे बट अनलेस अंटिल पास न होला जाय जो पीरियड टा रही छी से पीरियड रे खर्चा पई जो अमाउंट टा काढी थाए सेटा फॉर 2 मंथ्स पई सेटा ग्रांट करा जाय थाए दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ द टोटल एस्टिमेशन टोटल बजेट रो 1/6 सॉरी जो टोटल तंगर एस्टिमेशन थिबो तार 1/6 पैसा रा से मान को दिया जाय थाए. The amendments can be moved in case of appropriation bill. No, appropriation bill case रे amendments किछि मूव करा जाय परिबो नहीं मन किदा फाइनेंस बिल केस रे amendment ही परिबो बट appropriation bill केस रे no amendment should be there. दुईटा रंग अछि so none of the above. तो पूरा बजेट प्रोसेस केंते स्टार्ट हुए प्रेजेंटेशन ऑफ बजेट 1 सेकंड कोन हमर डिस्कशन ऑफ द बजेट 2 हे गला देन इट इज मूव टू व्हाट ना पार्लियामेंट्री कमिटीज रो स्क्रूटिनी पई जीवो 3 नंबर 4 नंबर होची वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 4 नंबर जोठरे के आपनकर डिस्कशन हो प्रत्येक बजेट रो वोटेबल पार्ट्स जोटा अछि सी बजेट रे दुईटा पार्ट थे गोटे वोटेबल पार्ट थे गोटे नॉन वोटेबल पार्ट था नॉन वोटेबल पार्ट कोन जो सैलरीज हे गला पेंशन हे गला व्हिच इज ड्रॉज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ए पार्टटा वोटिंग रे जाए नाही
तो ओनली द भोटेबल पार्टा डिस्कस हुए सेठे आपण बजेट जो अछि ताको कमेया पई जो ऑपोजिशन थिबो से माने कट मोशन पास भी करि परिबे से टाइम रे तो ए सब प्रोसेस हुए तो आफ्टर दैट एप्रोप्रिएशन बिल टा पास हबो एप्रोप्रिएशन बिल पास हबर फेला परे फाइनली को बिल टा पास हबो दैट इज फाइनेंस बिल टा पास हबो केते दिन भितरे फाइनेंस बिल पास हुए 75 डेज भितरे पास भी हबो प्रेसिडेंट रो साइन भी एठी बाजिबो एसेंट टा बाजिबो एठी मन रखिथान तो अमेंडमेंट्स कैन बी मूव्ड इन द केस ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल दिस इज रॉन्ग एप्रोप्रिएशन बिल केस रे नो अमेंडमेंट्स कैन बी मूव्ड मन रखिथान तो next we will move to question number 27 finance bills must be presented first in the lok sabha yes this is correct finance bill ta sobale lok sabha re first present kara jibo finance bill passed by the lok sabha can be retained by rajya sabha as long as it desires no this is wrong 14 days bhitare hi taku दबा को रिटर्न करिया को पड़े राज्य सभा मस्ट पास द फाइनेंस बिल और रिटर्न इट विद रिकमेंडेशन विद इन 14 days period this is right so 1 and 3 both are right so 1 and 3 option is C. Let's move to question number 28. In India a person can be member of council of ministers without being a member of parliament for a maximum of केते 6 मास जाए मन रखिथांतु जणे गोटे मिनिस्टर भी ही परिबो गोटे एमपी ही परिबो 6 मास जाए बिना इलेक्शन लड़की हाउएवर जदि ताकू से मिनिस्टर पद रे रहिबार अछि मंत्री पद रहिबार अछि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही की रहिबार अछि ताले 6 मास भितरे ताकू इलेक्शन लड़िया को पड़िबो देन क्वेश्चन आल्सो आस्क कि सर कोन जणे प्राइम मिनिस्टर ही परिबो विदाउट कंटेस्टिंग द इलेक्शन यस 6 मास से समान कंडीशन 6 मास भितरे ताको इलेक्शन लड़िबा को पड़िबो बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर किए चीफ मिनिस्टर किए दे आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हवा पई आपन को इलेक्शन लड़िया को पड़िबो विद इन 6 मंथ्स आपन हले हे कि 6 मंथ मध्ये आपन को इलेक्शन लड़िबा को पड़िबो एवं जितिबा को पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ लोक सभा Lok Sabha may be dissolved before the completion of 5 years period of its first sitting. This is correct. कि लोक जदि गवर्नमेंट रेजिग्नेशन दउची या अल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्म हेई पारुनी या फिर गवर्नमेंट जदि निजर मेजॉरिटी प्रूफ करी पारुनी एवं अल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्म हेई पारुनी तो बिफोर 5 year टर्म्स रे मध्य लोकसभा डिसॉल्व हो जिवो या फिर जदि प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट कले प्रेसिडेंट को डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर 5 year period of term से टाइम रे मध्ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाए द टर्म ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड इवन बियॉन्ड 5 years of its first sitting this is also correct during मन रखिथांतु नेशनल इमरजेंसी टाइम रे लाइफ ऑफ लोकसभा टा एट ए टाइम 1 year बढ़िबो अगेन 1 year पर अगेन आउट पार्लियामेंटरी लॉ पास करे कि अगेन 1 year बढ़ी परिबे से माने दिस इज ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी so both of these statements are correct. Consider the following statement about uniform civil code. Goa is the only state in the country that has UCC uniform civil code article 44. Goa is the only state no after independence परे हिमाचल प्रदेश मध्ये अछि जे कि UCC लागू करिछि it violates the constitutional freedom to practice religion of choice. This is correct article 25 to 28 right to religion so आपण जेतले UCC लगे दोछंती that means what is uniform civil code होची रूल समस्तन को पई समान irrespective of your religion रूल समस्तन समान ही जे वर्तमान कोन अछि प्रत्येक रिलीजन रो पर्सनल लॉज अछि मुस्लिम पर्सनल लॉज अछि हिंदू लॉज अछि क्रिश्चियन पर्सनल लॉज अछि जो पर्सनल लॉज सब अछि समस्त को में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करूछि whenever there will be UCC uniform civil code as jibo this will definitely curtail the constitutional freedom to practice the religion of choice so only 2 is correct. Consider the following statement salaries and allowance of the state council of ministers are determined by the governor from time to time no salaries and allowance की determine करिवो ना state legislative assembly parliament केस रे I mean जदि council of minister in the center सेटा के decide करिवो ना parliament state रे के decide करिवो ना state legislative assembly council of ministers ceases to exist immediately after the dissolution of the legislative state legislative office no this is also wrong चिंता करंतु जदि state legislative assembly टा dissolve हे गला
ଆଉ ଯଦି କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସିଜେସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତା ମାନେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟରେ ବିଲକୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଅରାଜକତା ଦେଖାଯିବ। ତ এই টাইমে যেତେବେଳେ স্টেট লেজিসলেটিভ আসেম্বলিটা ডিজলভ হয়ে যায় কাউন্সিল অফ মিনিস্টার অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য কেয়ারটেকর গভর্নমেন্ট অনটিল হোয়াট অনটিল দ নিউলি কনস্টিट्यूटेड লোকসভারে ନୂଆ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଓଥ ନ ନେଲା ଯାଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 32 with reference to the electoral bonds consider the following statement. It is a financial instrument for making donation to political parties. State Bank of India is authorized to issue and encash these bonds. Electoral bonds बहुत न्यूज रे अछि वर्तमान बार बार हमें कहूछु कि आमे टेस्ट सीरीज रे आपन को बहुत सारा करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस मध्ये प्रोवाइड करूछु। सो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम टा 2018 रे आस्थिला एवं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम किए आनिथिले से टाइम रे फाइनेंस मिनिस्टर थिले अरुण जेटली मन रखितांतो। सो व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम रे जदि आपन को मन रखितांतो 2000 टंका रु बेसी कैश रे जो 2000 टंका जे आपन कैश रे दे परिबे कोन डोनेशन काहा को पॉलिटिकल पार्टीज को जदि कैश रे देबा को चाहछन्ती मैक्सिमम करे 2000 रुपीस जे आपन डोनेशन दे परिबे ताठू बेसी जदि दबार अछि आपन को आइदर चेक रे नहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिबा को पड़िबो कोठी ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे कोन करिवे जाकि सेटो बॉन्ड किनिबे दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड। अच्छा बॉन्ड केते केते टंकार डिनोमिनेशन अछि ना डिनोमिनेशन एटी देखन लिखा हिची 1000 टंकार 10000 टंकार डिनोमिनेशन 1 लाख रो 10 लाख रो 1 करोड़ रो ए सब रो डिनोमिनेशन रो आपन बॉन्ड थाए आपन को जेतकी रो दबार अछि सपोज आपन को गोटे 8 लाख रो डोनेशन दबार अछि तो आपन 1000 टंकार 8टा बॉन्ड किनिबे या फिर आपन 10000 रो गोटे बॉन्ड जदि आपन 10000 डोनेशन दबार अछि 10000 टंकार गोटे बॉन्ड किनिबे। अच्छा किनिला परे से इलेक्टोरल बॉन्ड को आपन को काहा को सबमिट करिया को पड़िबो पॉलिटिकल पार्टीज को ना जो पॉलिटिकल पार्टी पे किनी थिबा पॉलिटिकल पार्टी पाखर केते दिन टाइम था कि एनकैश करिवे पैसा बाहर करिवे से बॉन्ड को अगेन एटा करी कि सबमिट करी कि से माने पैसा एनकैश करिवे ता अगेंस्ट दैट इज 15 डेज पीरियड मध्य रे तो ई दायित्व काहा को दिया हिची दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड टा केबे केबे आपनकर बिक्री हुए तो मन एडी देखंतु एडी हम डिस्कस कर देछि ऑलरेडी कि जनवरी मासरे फिर फेब्रुआरी मार्च गैप अच्छी अप्रैल मई जून गैप अच्छी जुलाई अगस्त सितंबर गैप अच्छी फिर अक्टोबर फिर नवेम्बर डिसेंबर गैप है कि पुणी जनवरी तो यही जनवरी अप्रैल जुलाई एंड अक्टोबर मासर पीरियड 10 दिन प्रत्येक मास ये जो 4टा मासरे 10 दिन 10 दिन प्रत्येक मासरे 10 दिन आपनकर बॉन्ड टा बिक्री हेई थाए मन रखता डोनर्स नेम इज नॉट मेंशन ऑन द बॉन्ड डोनर्स नेम मध्ये मेंशन नता है। हाउएवर वर्तमान स्टेटस कोन ना जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छी दैट इज कंप्लीटली नल एंड भॉइड वर्तमान एको स्क्रैप कर देछि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 33 consider the following statement the right to assemble peacefully without arms is enshrined in article केते 19 एटा मन रे फंडामेंटल राइट समस्त को मोहरे थिबा जरूरी article 22 of the constitution provides protection against double jeopardy no this is article 20 तो both are wrong डबल जो अच्छा आर्टिकल 20 को जिनस में प्रोटेक्शन दिए ना एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ माने लॉ क्रिमिनल केस रे देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ सेकंड डबल जियोपार्डी माने दुई थरा आपन को दंड मिली परिबो नाही आर्टिकल 20 कहूची समान क्राइम पई डबल जियोपार्डी डबल दंड आपन को मिलिबो नाही। थर्ड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने जबरदस्ती आपन को जदी कि निज अगेंस्ट ही साक्ष्य दबा पई पुलिस जदी आपन को बाध्य करूची सेटा कोर्ट ऑफ लॉ रे एडमिसिबल हबो नाही मन रखिथांतु। Next we will move to question number 34 where does the election commission get the power to advise the president on matters related to the disqualification of member of the parliament disqualification of member of parliament ता होची आपनकर आर्टिकल 103 जोटी की प्रेसिडेंट डिसाइड करंती रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर और केस रे तांको की सजेशन देथांती ना इलेक्शन कमिशन और इलेक्शन कमिशन के पावर टे के दोउची ना दिस इज गिवन बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 मन रखते। अच्छा एंटी डिफेक्शन लॉ से केस रे आपनकर डिफेक्शन जदी होची से केस रे आपनकर की डिसाइड करिवे जेंती एठरे प्रेसिडेंट डिसाइड करचंती डिफेक्शन केस रे मन रखते की डिसाइड करिवे ना स्पीकर डिसाइड करिवे से केस रे के डिसाइड करिवे स्पीकर और स्पीकर डिसीजन टा दैट इज सब्जेक्टेड टू योर जुडिशियल रिव्यू
that is subjected to judicial review. Consider the following statement regarding the interstate council. Interstate council मन रखिथांतो established under को कमिशन रिकमेंडेशन ना एटा उडे मन रखिथांतो को कमिशन रिकमेंडेशन रे इंटरस्टेट काउंसिल ना सरकारिया कमिशन रिकमेंडेशन रे सरकारिया सरकारिया कमिशन रिकमेंडेशन आर्टिकल 263 it is chaired by whom this is yes किए एस्टैब्लिश करंती ना प्रेसिडेंट मन रखिथांतो this is correct statement 1 is correct it is chaired by whom not home minister this is chaired by the prime minister आउ आपनकर इंटरस्टेट काउंसिल रे केते जण मेंबर थांती ना दैट इज प्राइम मिनिस्टर रहिबे एंड देयर इज के रहिबे आपनकर 6 जण यूनियन मिनिस्टर रहिबे सेठी प्राइम मिनिस्टर रहिबे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स रहिबे प्लस चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूटीज विथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जोटरे की लेजिस्लेटिव असेंबली अछि जेंति दिल्ली एंड पोंडिचेरी तार चीफ मिनिस्टर रहिबे अच्छा जो यूटीज रे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नाही सेटर की रहिबे ना एडमिनिस्ट्रेटर सेटर जे एडमिनिस्ट्रेटर अछंती से रहिबे ता बाद रे अच्छा को स्टेट रो जदी आपनकर प्रेसिडेंट रोल लागि तो के शासन करतबो गवर्नर तो गवर्नर मध्ये मेंबर रहिबे ओके सो दिस इज ओनली वन इज करेक्ट the chief minister of all the states chief minister of the union territories then governor of the president rule jagare governor rahibe UTs then 6 ministers of cabinet rank eta rahibe okay union home minister ji se hochandi chairman of the zonal council definitely next which of the following is consequence of the nota none of the above nota mane kona none of the above exceeds 50% see भोट जेते आपण देवा पई जानती ईवीएम मशीन रे आपण को जो मानकर भोट थाए भोट बाद रे गोटे ऑप्शन थाए नोटा ऑप्शन बोली की तो आपण आइदर ए पार्टी को वोट दे परिबे आ गोटे पार्टी या फिर आपण ए ऑप्शन पार्टी बी को वोट दे परिबे या फिर आपण नोटा ऑप्शन मजे दबे परिबे क्वेश्चन नीचे कोन के नोटा जदी नोटा वोट्स ता 50% क्रॉस करियाला तो कोन हो इलेक्शन कैंसिल हो कि नो मन रखि तांतु डायरेक्ट इलेक्शन केस रे कोन लागे ना पूर्व क्लास रे बतई थिली पूर्व टेस्ट सीरीज डिस्कशन रे फास्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन फास्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन ठीक है तो एक केस रे कोन हो इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट किछि इलेक्शन रिजल्ट को अफेक्ट करिवो नाही मन रखि तांतु फास्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन केस रे कोन हुए ना से केस रे कोन हो ना जरूरी न हो नोटा 50% ऊपर मध्ये था सपोज देयर इज 100 टा वोट अछि एवं नोटा रे आपनकर 60 टा वोट पळे आसिला कैंडिडेट के जण अछंती ना दुई जण अछंती तो बळिला केतेटा वोट रहिला 40 टा वोट रहिला अच्छा ये 40 टा वोट रो गोटे कैंडिडेट पाइछि 30 टा वोट आ गोटे कैंडिडेट पाइछि आपनकर 10 टा वोट तो जी 30 टा वोट पाइछि से डिक्लेयर हबो विनर जरूरी न हो कि ताको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 50% ऊपर आनिबार अछि जदि से दुई जण के भीतर जे मेजॉरिटी रहिला से जितिबो फिर क्वेश्चन नंबर 37 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इंटीग्रेटेड जुडिशियरी दिस इज करेक्ट इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट दिस इज आल्सो करेक्ट विथ द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेक्स्ट द रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन प्रैक्टिस एज एन नो प्रैक्टिस करि परिबे नाही मन रखि थांतु तो 1 and 2 इज करेक्ट 37 38 को आसंतु एनी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द इंडियन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज डिसाइडेड बाय पूर्व क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करथिले बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 103 यस एडी देखंतु लिखा हिची दिस इज आर्टिकल 103 पूरा एक्सप्लेनेशन अछि आपण पढि परिबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पचारुची members of the Lok Sabha are directly elected by the eligible voters this is correct money bill can only be introduced Lok Sabha yes Rajya Sabha introduce हे परिबो नाही only in Lok Sabha Vice President of India is the ex-official chairman of Rajya Sabha. This is also correct. President nominates 4 members of the Anglo-Indian community to Lok Sabha. This is wrong. आगुरु देखंतु केते जण को से नॉमिनेट करि पारथिले ना दुई जण मेंबर को नॉमिनेट करि पारथिले बट मन के थांतु 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर प्रेसिडेंट कैन नॉट वर्तमान नॉमिनेशन जोटा ऑफ 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स थिला सेटा को कंप्लीटली कोन कर दिया हिची एबोलिश कर दिया हिची वर्तमान देयर इज नो नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोक सभा मन रखतांतु नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 40 who can file nomination papers for election of lok sabha any citizen of india हबनी
बिकॉज आपनकर मिनिमम लोकसभा पे केते वर्ष हवा दरकार 25 ईयर हवा दरकार anyone residing in India तो बिल्कुल होबो नहीं a resident of a constituency from where election is to be elected ना एंड जरूरी नुह कि आपण जो माने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपण रहुचंती सिर्फ सेठी आपण इलेक्शन लड़ी परिबे वर्तमान आपण जानि चंती कि धर्मेंद्र प्रधान जी से संबलपुर लडुचंती फ्रॉम बीजेपी एंड आपनकर बीजेडी रो कैंडिडेट की अछंती सेठी दैट इज बबी दास अछंती सेठी तो बहुत संबलपुर तो नुहंती से माने बट लडुचंती ना संबलपुर से माने तो एटा मध्ये नुह एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम्स अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी दिस इज करेक्ट आर्टिकल 41 मैच करंतु डायरेक्ट कहि दोची आर्टिकल 324 कोन इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 315 कोन यूपीएससी एंड एसपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन आर्टिकल 315 देन आर्टिकल 280 इज योर फाइनेंस कमिशन दिस इज फाइनेंस कमिशन आर्टिकल 338 होची नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 42. Consider the following statement regarding the national emergency. National emergency proclamation आपन को पूर्व क्लास रे मध्ये बताया हितला national emergency article 352. National emergency can be external emergency, internal emergency. External emergency को केस रे हबो war और कोन हबो ना आपन को जदी war ही गला से टाइम रे आपन किमा जदी external disturbances हे गला external rebellion हला से केस रे आपनकर एक्सटर्नल इमरजेंसी लागिबो और इंटरनल इमरजेंसी को टाइम रे लागिबो इन केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन केस रे ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली a part of it this is correct president can proclaim the national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet मन रखितंतो सिर्फ आगुरो कोन थिला कि प्रेसिडेंट जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर जदी प्रेसिडेंट को कहउथिले तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हितला दैट इज को टाइम रे एंती हितला ना एटा हितला ड्यूरिंग योर 1975 नेशनल इमरजेंसी टाइम रे तापरे आपनकर जतेबेले 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसिला से टाइम रे इट इज बाध्य करा हितला कि प्रेसिडेंट कैन ओनली प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट मन रखिथांतु एवं जतेबेले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हबो आर्टिकल 358 अंडर रे 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन जोटा सेटा ऑटोमेटिकली कोन हे जिवो सस्पेंड हे जिवो ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी जोटा एक्सटर्नल इमरजेंसी हम जहा को कहूछु आर्टिकल 359 कोन कहूछि ना प्रेसिडेंट डिक्लेयर करिवे कि को ताकू आर्टिकल 19 को छाड़ी की आउ कोन कोन आर्टिकल अछि जोटा कि से सस्पेंड करिया को चाहूचंती एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 को केस रे मध्य सस्पेंड हे पारिबो नाही मन रखिथांतु next we will move to question number 43 with the reference of the election of the vice president of India which is declared void by the Supreme Court of India with the following statement is correct the act done by the vice मन रखिथांतु कि vice president रो जदी जदि वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन जदि void declare हैला null and void declare हैला by the Supreme Court the acts done by him before or on the date of declaration ता डिक्लेरेशन डेट दिन किंबा ता पूर्वरु जहा जहा से डिसीजन नै चंती से सब वैलिड रहिबो ताकू छाडी कि ता परर सब इनवैलिड हि जिवो या ता परे से किछि डिसीजन देई परिबे नाही बट ता आगर सब डिसीजन वैलिड हि कि रहिबो तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट let's move to question number 44 if the law made by the state legislature on the subject in the concurrent list is inconsistent with the union law then such a law of the state legislature is देखंतु जेतेबेले concurrent list रे को सब्जेक्ट concurrent list माने कोन concurrent list रे आपनकर जो जो सब्जेक्ट्स रहिबो ता ऊपर बोथ सेंटर भी लॉ बनै परिबो स्टेट भी लॉ बनै परिबो अच्छा जदी सेंटर स्टेट रो लॉ इनकंसिस्टेंट विथ द यूनियन लॉ सहित जे इनकंसिस्टेंट हबो तो से केस रे कहार लॉ प्रिवेल करिवो ना यूनियन लॉ प्रिवेल करिवो यूनियन लॉ टा प्रिवेल करिवो और सेंटर रो लॉ जो स्टेट रो लॉ जोटा थिबो सेटा कोन हे जिवो रिपील हे जिवो तो एटी ऑप्शन देछि रिपग्नेंट मींस रिपील हे जिवो सेटा तो द ऑप्शन इज करेक्ट अल्ट्रा वायर्स रो माने होची बियॉन्ड योर पावर बट एटी कनकरेंट लिस्ट रे दु जनकर पावर अछि कि से माने लॉ बनै परिबे तो एटा तो ऑप्शन हबो नाही
अनकन्स्टिट्यूशनल हबो नाही बिकॉज जदि अनकन्स्टिट्यूशनल को केस रे हुए इफ इट इज नॉट विथ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट सैटिस्फाई द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से केस रे अनकन्स्टिट्यूशनल हुए void ab initio यार माने होची कि लॉ जो दिन बनिला से दिन ताको void माना जीवो दैट इज void ab initio तो दिस नोन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट द रिपग्नेंट कि जदि इट इज इनकंसिस्टेंट विथ द यूनियन लॉ तो सेही केस रे कहार लॉ प्रिवेल करिवो ना यूनियन लॉ प्रिवेल करिवो हम स्टेट लॉ टा कोन हिजिवो रिपग्नेंट हिजिवो या रिपील हिजिवो आपे आपे क्वेश्चन 45 हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट बहुत करंट अफेयर्स क्वेश्चन चक्रधारी शरण सिंह मन रखि थांतु स्टैटिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स क्वेश्चन हु इज द प्रेजेंट एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा दिस इज अशोक कुमार परिजा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखंतु जेनिम कहिथिल इलेक्शन ऊपर क्वेश्चन थिला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऊपर मध्ये क्वेश्चन अछि इट्स ए व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इट्स ए कंसेंसस डॉक्यूमेंट कंसेंसस कहार कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज मानकर कंसेंसस कि पॉलिटिकल पार्टी माने एग्री करिवे कि इलेक्शन कमिशन किछ रूल्स बनाओ आ से रूल्स को इलेक्शन टाइम रे प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी मानिवे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू द इलेक्शन कमिशन नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किछ मेंशन नाही एटा पार्टी माने निज निज मध्य रे सहमति देई कि गोटे कोड ऑफ कंडक्ट से माने करिथांती इलेक्शन कमिशन तांको पई बनै थाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट The model code of conduct is legally binding. No, this is not legally binding. It is legally madhya binding no because it is statutory किछि act under आसु नाही तो it is legally binding madhya नुह तो मन रखि तांतु मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जोटा अछि केबेटू स्टार्ट हिता फ्रॉम द डे ऑफ शेड्यूल इलेक्शन रो शेड्यूल जो दिन डिक्लेयर हबो अप टू कहू जाय ना इलेक्शन रो रिजल्ट डिक्लेयर हला जाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हबो आचार संहिता जाको कहा जाय थाय तो तार बहुत सारा रूल्स अच्छी कि आपण एतकी आपण प्रचार करि परिबे को जिंसटा प्रचार रे आपण यूज करि परिबे नाही को टर्म रिलीजन को जंती कि आपण आनी परिबे नाही प्रचार टाइम रे तो एंती बहुत सारा जिंस अच्छी जोटा कि आपण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे डिटेक्ट हेछि नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 48 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पार्लियामेंट कैन मेक लेजिस्लेशन फॉर द स्टेट्स Parliament can make legislation for the state पांचटा केस रे मन रखि तांतु when राज्यसभा passes a resolution that is correct राज्यसभा कोन it is the representation of the states तो राज्यसभा when passes a resolution से केस रे parliament can make legislation for the states during national emergency automatically national emergency time रे parliament has overriding legislative power मन रखि तांतु so से केस रे करि परिबो to implement the international agreement this is also correct during president rule time रे कोन हुए ना आपनकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ता डिसॉल्व हो जाए नेशनल आपन लेजिस्लेटिव असेंबली ता सस्पेंड हो जाए से केस रे लेजिस्लेशन के बनेबो तो स्टेट रो ना पार्लियामेंट बनेबो 5 नंबर केस होची कि निजे स्टेट लिखि की दबो पार्लियामेंट को कि एई पर्टिकुलर टॉपिक रे या पर्टिकुलर सब्जेक्ट रे आपन लॉ बनांतु से केस रे पार्लियामेंट लॉ बनै परिबो तो ऑल द फोर्स आर करेक्ट 49 yes which of the following is known as the super cabinet कोन ना पॉलिटिकल अफेयर कमिटी जहार सबटु बेसी पावर थाए एंड बिकॉज़ ऑफ दैट ताको कोन कहा जाय ना सुपर कैबिनेट कहा जाय लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 50 कि शैडो कैबिनेट कोन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन शैडो कैबिनेट दिस इज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ कैबिनेट वेस्टमिनिस्टर मॉडल कोडी अछि ना यूके रे अछि यूके माने ब्रिटेन रे अछि सेटा तो शैडो कैबिनेट थाए कोन ना शैडो माने होची परछाई हमरो छाया हमरो तो आमे जेंती काम करू हमरो छाया मध्ये सेंती एक्ट करे तो बेसिकली गोटे साइड रे की बसतांती ना आपनकर ऑपोजिशन पार्टी थाए आ गोटे साइड रे आपनकर रूलिंग पार्टी थाए तो रूलिंग पार्टी रे जो माने आपनकर कैबिनेट मिनिस्टर्स थांती डिफरेंट पोर्टफोलियो रे कैबिनेट मिनिस्टर मन थांती के फाइनेंस मिनिस्टर अछि के डिफेंस मिनिस्टर अछि के एजुकेशन मिनिस्टर अछि सिमिलरली ऑपोजिशन कोन करिवो गोटे शैडो कैबिनेट दीज आर कैबिनेट मिनिस्टर्स सिमिलरली ऑपोजिशन मध्ये गोटे कैबिनेट बनेइबो सेटरे मध्ये जणको फाइनेंस मिनिस्टर रो काम को रेगुलेट करिया पे काम रहिबो जने एजुकेशन मिनिस्टर रो काम को चेक करिवो जने फाइनेंस मिनिस्टर रो काम को चेक करूची जने डिफेंस मिनिस्टर रो काम को चेक करूची ता द्वारा हबो कोन ना दे आर स्ट्रिक्टली कंट्रोलिंग द रूलिंग पार्टी को से माने कोन करिवे
स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेंगे तांकर रूल्स तांकर पॉलिसीज को ता सहित कोन करेंगे दे आर ऑब्जर्विंग कि सामना वाला केंती काम करूचंती दे विल प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर मिनिस्ट्रीज से आगो को जदी ऑपोजिशन पार्टी जीते तो तांकर एक्सपीरियंस रहइबो 5 वर्ष से माने देखुचंती कि फ्रंट तो केंती काम करूची से अनुसार से माने ताको चेक भी करूचंती तांकर बेटर एक्सपीरियंस रहइबो तो दिस इज शैडो कैबिनेट with reference to the composition of the legislative council in India with which of the following state is correct legislative council in the legislative council there may not be more than 1/3 members of the total membership ba mon rakhi thantu maximum kete member rahibe legislative council re na maximum rahibe 1/3 of the total member of the legislative assembly अब minimum kete rahibe na minimum rakhi thantu 40 rahibe legislative council re so this is both the statement are correct next होची legislative council जी होची legislative council किए बनैबो ना legislative council can be formed in a state by the simple majority of the parliament रो simple majority रे पास है कि अपन legislative council बनैबो जेते बेले कि सेम रेजोल्यूशन ता स्पेशल मेजॉरिटी रे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे पास हबो मन रखितांत आगो कोन हबो ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थिबो सपोज ओडिशा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे गोटे स्पेशल मेजॉरिटी रे रेजोल्यूशन पास हबो कि हां ओडिशा रे गोटे विधान परिषद दरकार वर्तमान वांस सेटा स्पेशल मेजॉरिटी रे पास हे गला देन सेटा जीवो कोठी को पार्लियामेंट को ना पार्लियामेंट रे सेही रेजोल्यूशन टा सिंपल मेजॉरिटी रे वांस पास हबो देन जाय कि आपनकर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल टा एस्टैब्लिश हबो हाउ मेनी स्टेट्स आर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट्स कहितली आपन को आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एवं नॉर्थ इंडिया रे किए यूपी एंड बिहार यस एटी पूरा आपन कर देछि कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रो जो मेंबर माने थांदी केंति की इलेक्ट होंती ना 1/3 मेंबर इलेक्ट होंती फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आउ 1/3 मेंबर इलेक्ट होंती फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल अथॉरिटीज लाइक म्युनिसिपैलिटी जिला परिषद ब्लॉक परिषद 1/12 ऑफ द मेंबर माने इलेक्ट हितांती फ्रॉम ग्रेजुएट ऑफ द स्टेट्स और 1/12 इलेक्ट होंती फ्रॉम द टीचर्स ऑफ द स्टेट और जो रिमेनिंग रही गले से माने नॉमिनेट होंती बाय गवर्नर जो कोको फील्ड से माने नॉमिनेट होंती साइंस आर्ट लिटरेचर देन आपनकर कोऑपरेटिव वर्क और सोशल सर्विस ए पांचटा वर्क जिनस क्राइटेरिया रे से माने एट लिखाई छी देखंतु लिटरेचर हे गला साइंस हे गला आर्ट हे गला कोऑपरेटिव मूवमेंट हे गला एंड सोशल सर्विस हे गला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर इन इंडिया स्पीकर इज प्रोवाइडेड विथ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दैट इज करेक्ट his salaries and allowances are fixed by the parliament this is also correct speaker first speaker किए थिले आपण मन को पई गोटे टास्क रहिला आपण माने जानतु खोजंतु फर्स्ट स्पीकर किए फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर किए पार्लियामेंट रो नेक्स्ट स्पीकर जो अछन आपण कहिथिली तीनटा कमिटी रे से ऑटोमेटिक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हे थांती को कमिटी बिजनेस एडवाइजरी कमिटी और रूल्स कमिटी हे गला एंड को कमिटी ना जनरल पर्पस कमिटी नेक्स्ट 53 यस आउट जिंस देखंतु कि जदी मोशन टू रिमूव द जदी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अपन रिमूव करिया को चाहचंती इन दैट केस यू नीड एटलीस्ट जो मोशन टा पास हो सेति पई कहा केते जण मेंबर सपोर्ट दरकार आपन को मोशन टा को मूव करिया पई 50 जण मेंबर रो सपोर्ट दरकार आपन को आउट जिंस हमन को स्पीकर केस रे कोन स्पीकर जे इज द फाइनल अथॉरिटी रिगार्डिंग डिसीजन ऑफ मनी बिल को सर्टिफाई किए करिवे ना स्पीकर करिवे अगेन कोन ना एंटी डिफेक्शन लॉ केस रे कि कहार डिसीजन इज फाइनल ना स्पीकर डिसीजन फाइनल बट इट इज सब्जेक्टेड टू कोन ना जुडिशियल रिव्यू it is subjected to judicial review if an ordinary bill originated and passed in the state legislative council of a bicameral states in the India and state legislative assembly council रे pass वाला bill टा ordinary bill टा but assembly ताको reject कर देला तो bill सेठी lapse हे जिवो मन रखितांतो because state रे council रो सेति की पावर न थाए जेतकी legislative assembly रो पावर टा थाए next who describe India as a quasi federal state बहुत simple question this is Casey Ware yes 55 the bicameral legislature is an essential feature in which of the following types of government bicameral legislature कोठी जरूरी bicameral legislature कोन लोकसभा एंड राज्यसभा अच्छा लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट्स माने जोटी स्टेट्स रो वॉइस स्टेट को रिप्रेजेंट करा जाउथिबो
तो सेटा को केस रे पॉसिबल ना फेडरल सिस्टम रे आपण स्टेट्स को पावर दोचंदी ना तो स्टेट्स को सेंटर रे मध्ये आपण कोन दोचंदी पावर दोचंदी थ्रू राज्यसभा दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट इज थ्रू राज्यसभा सो इट्स ए फेडरल सिस्टम रो एसेंशियल फीचर नेक्स्ट मन रखंतु क्वेश्चन नंबर 56 द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज बीन एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज गुलेटिन टा जोटा थाए मन रखिथांतु कोन होय ना वोट फॉर ग्रांट्स वोट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स जोटा तो ग्रांट्स पई जो वोट हबो सेटा गोटे अराउंड 26 डेज रा टाइम पीरियड दिया छे से भीतर सेटा डिस्कस हबो से ऊपर वोट हुए बजेटरी सेशंस रे तो मन रखिथांतु कि जदी पूरा टाइम पीरियड पास हे गला तो जदी आउ किछटा आइटम रहि जाय छि जोटा कि डिस्कस हेई पारिनी तो कोन करा जिवो से केस रे स्पीकर टा कोन करबे व्हेन द टाइम अलॉटेड फॉर द बजट डिस्कशन इज एग्जॉस्टेड से टाइम रे स्पीकर कोन करिवे ना से टाइम रे स्पीकर डायरेक्टली ताको वोट पई कोन करिवे ना वोट पई ताको पुट फॉरवर्ड करिवे ताको कहा जाय गुलेटिन बोली की कहा जाय थाय so this ensure that budget is passed within allocated time and the government can continue its work without any delay so once the bulletin is applied any remaining demands for grants are put to vote without further discussion out discussion point time मिलिबनी डायरेक्ट वोटिंग हो से पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर या टॉपिक पर्टिकुलर बजट ऊपर नेक्स्ट what is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India Supreme Court autonomy क्वेंती हुए while appointing the Supreme Court judge the President of India has to consult the Chief Justice of India this is correct ए जगह autonomy रहउची because जदी प्रेसिडेंट डायरेक्ट ओनली पार्लियामेंट रो कथा सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो कथा सुनी कि जदी अपॉइंटमेंट करिवे तो से केस रे ऑटोनॉमी रहिबो नाही सुप्रीम कोर्ट रो नेक्स्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन रिमूव बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली सुप्रीम कोर्ट जजेस कोन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केस रे रिमूव होंती कि ना तो दिस इज रॉन्ग कोन सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस केंती पार्लियामेंट थ्रू से माने पार्लियामेंट जदी रेजोल्यूशन पास कला देन प्रेसिडेंट से मान को रिमूव करि परिबे द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज्ड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया to which the legislature do not have to vote this is not the consolidated fund of India this is the non votable part this is correct all the appointments of officers or staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting with the Chief Justice of India no जितकी भी स्टाफ थांती सुप्रीम कोर्ट रो किए ताको अपॉइंट करती ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मन रखि थांतु तो दिस इज रॉन्ग तो कौन कौन सेफगार्ड द ऑटोनॉमी नो 1 and 3 ऑप्शन ए इज 1 and 3 58 question number 58 article 123 ordinance making power of the president is article 123 ordinance को time रे pass हो ना ordinance made when both the houses are in session is valid if approved by the council of minister and parliament no मन रखि थांतु जदि प्रेसिडेंट सैटिस्फाई हेले कि गोटे सिचुएशन आछि जो टाइम रे कि किछि गोटे सब्जेक्ट रे तांकु लॉ बनेबार अछि बट जदि सेही टाइम रे if both the houses of parliament are not in session or one of the house of parliament is not in session one jodi gote house bi session re nothibo kima duita house session re nothile se time re in case of urgent matter gote kichi gote urgency matter re jodi tango law banaibar thibo se case re president article 123 use kari ki ordinance pass kari paribe and ordinance cannot be used to amend the constitution this is correct mon kithantu ordinance can be passed in case of ordinary bill money bill कोई भी बिल केस रे बिल रिलेटिंग ऑर्डिनेंस पास करा जाय परिबो प्रेसिडेंट द्वारा बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केस रे ऑर्डिनेंस पास करा जाय परिबो नाही आ गोटे ऑर्डिनेंस रो मैक्सिमम टाइम पीरियड केते 6 months and 6 week okay this is B only 2 is correct yes this is 6 weeks what's the following statement Odisha MLA list includes 147 members of the yes MLA kete jana chune 147 11 Rajya Sabha members are elected to Rajya Sabha by members of Odisha state legislature no 10 eta मन रखि थांतो 9 11 no 10 जन राज्य सभा को जानती 21 जन कोठी को जानती लोकसभा को जानती तो 21 जन होचंदी लोकसभा एमपी 10 जन राज्यसभा एमपी 13 seats are general candidates 4 for SC ST candidates
ठीक अच्छे दिस इज करेक्ट तो 1 and 3 is answer so ठीक अच्छे which of the following how many statements given above are correct B only two statements sir yes it is statement पचारछि only two statements are correct 1 and 3 is correct ठीक अच्छे next we will move to question number 60 the president can make an advance out of it को fund ना contingency fund of India केतेटा fund अछि ना public account fund consolidated fund of India and contingency fund of India तीनटा fund अछि government of India रो contingency fund of India कोन ना for an unforeseen expenditure to meet an unforeseen expenditure कोन ना suddenly war हे गला suddenly कि गोटे disaster natural disaster आसी गला so unforeseen expenditure को meet करिया पई president can make an advance out of it pending its authorization by the parliament देखो जेते बेले suddenly war हे गला suddenly relief दिया जीवो disaster time से टाइम रे they cannot wait for the authorization of parliament कि हां हमको पैसा दरकार तमे authorize करो parliament नो सेथि पई प्रेसिडेंट रो गोटे सेपरेट से गोटे फंड को मैनेज करंती थ्रू कोन ना कैबिनेट सेक्रेटरी फंड इज हेल्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द कोन on behalf of the president no this is from for a finance secretary ji thanti on behalf of monokithan this is finance secretary yes finance secretary through re manage kari thanti president se fund ro contingency fund ro purpose kete 500 crore सब बेले 500 crore सब बेले contingency fund of India रे maintain होउछि okay let's move to question number 61 again गोटे static question देला national commission for backward class अच्छा NCBC जो अछि national commission for backward class एटा को constitutional status केबे मिलला ना एटा constitutional status मिलला थ्रू 102 constitutional amendment act मन रखि थांतु तो यार चेयरपर्सन किए ना हंसराज गंगाराम अहीर तो 102 constitutional amendment act थ्रू रे article 338 b आर्टिकल 338 बी टा इंट्रोड्यूस हेथिला माने इंसर्ट करा हेथिला कॉन्स्टिट्यूशन रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कोन ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया दिस इज करेक्ट 5 इयर्स रो जज हेतिबा ए कोर्ट रो 10 वर्ष एडवोकेट दिस इज करेक्ट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हेतिबा इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट दिस इज करेक्ट इट शुड बी नो देयर इज नो मिनिमम एज किछि नाही so D is not the necessary not the requisite qualification for the Supreme Court judge. Next we will move to question number 63. Yes, tenure kete achi mano kitantu 65 years of age. Which commission was constituted to examine the subcategorization of the other backward classes? This is Justice Rohini G Rohini tanko कमिशन जो अभी रिपोर्ट टाइप प्रेसिडेंट मुर्मू को आफ्टर 13 एक्सटेंशन पर वर्तमान से रिपोर्ट सबमिट करिसंती अदर बैकवर्ड सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसीज मानक मध्य जो सब कैटेगराइजेशन रो जो रिपोर्ट टा जी रोहिणी जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जने जी रोहिणी तांकर कमिटी टा सबमिट करिछि रिपोर्ट टा नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर नीड्स to be the proposer for the presidential candidate mon rakhitantu 50 electors as proposer and 50 electors as seconder so 50 electors answer 65 question number 65 consider the following statement the amendment to the provision related to the federal structure must be ratified by half of the states by special majority this is wrong this is by simple majority मन कथंतु फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करिया बे कोन हबो ना पार्लियामेंट रे जो रिजोल्यूशन ता पास हबो कहा द्वारा केते द्वारा बाय स्पेशल मेजॉरिटी एवं हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर थ्रू सिंपल मेजॉरिटी ताको कोन करिवे पास करिवा जरूरी फॉर ए फेडरल स्ट्रक्चर को जदी आपण अमेंड करिया को चाहउचंती नॉट स्पेशल मेजॉरिटी दिस इज सिंपल मेजॉरिटी इन द by half of the state legislature or special majority in the parliament amendment regarding the delimitation constituencies require ratification of the half of the states amending regarding the delimitation of constituency no constituency को अपन delimit करचंती तो article 3 टा यूज होय केस रे article 3 अंडर रे simple majority अंडर रे
आपण को जिंस को भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज करि परिबे स्टेट रो ना चेंज करि परिबे तो एथि पे कोन दरकार ना हाफ ऑफ द रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स दरकार नहीं सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट रे एटा चेंज हबो तो ओनली नो ए केस रे नन ऑफ द अबव हबो मन रखि थांतो आंसर टा रॉन्ग अछि एठी आंसर टा हबो डी नेक्स्ट वी विल सी एठी एक्सप्लेनेशन ठीक देइची सिंपल मेजॉरिटी रे पास हबो कहि बट आंसर टा गोटे भूल प्रिंट हे जाइची आंसर हबो डी नेक्स्ट consider the following statement regarding the provision of the Charter Act of 1793 Charter Act see Charter Acts माने आपण मन रखि पड़िबो 73 Charter Act जोटा का रेगुलेशन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली कहा होची देन आपनकर पिट्स इंडिया एक्ट अछि देन आपनकर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 अछि तो होम गवर्नमेंट मेंबर्स वर टू बी पुट आउट ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू नो कहा को तुमको पेड केंती करा होतला हमको पे करा होतला फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू रो the revenue administration was separated from the judiciary function this is correct so only B is correct आउ जिन समन 1793 रो जो चार्टर एक्ट थेला 20 इयर्स रे एक्सटेंशन देइथिला कोन को ना ब्रिटिश जो समनकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट थिला समनकर ट्रेड थिला जोटा ताकू ईस्ट इंडिया कंपनी रो ट्रेड को ईस्ट इंडिया कंपनी रो ट्रेड को 20 इयर्स रे अगेन एक्सटेंशन मिलथिला So the act renewed the company's commercial privilege for next 20 years. Companies पूरा अपन को रेटी Charter Act of 1793 अच्छी go through it. The ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru first amendment रे ही ninth schedule टा introduce करे थिले. ninth schedule को लेके famous case अच्छे अपन को को case टा IR कोहेलो केस अच्छे आपनकर 2007 रो 2000 IR कोहेलो केस 2007 जोटी कोहाइतला कि 19 मन के थांत केशवानंद भारती केस आइतला ना 1973 तो 1973 24 अप्रैल 1973 पोरे जहां भी जिंस माने इंक्लूड करा हिची इन द 9th शेड्यूल दैट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू 1973 पूर्वरो जहां जा थिला that are not subjected to judicial review but after 1973 24th April 1973 all whatever matters are included in the 9th schedule are subjected to judicial review that is IR Coelho case. Next we will move to question number 68 which of the following statement are correct regarding the power of the president of India to promulgate ordinances. Ordinance making power of president article 123 ordinance can be promulgated to give effect to a bill pending before the parliament yes but bill pending अछि parliament पाखरे पास ही पारुनी but matter to about urgent of parliament रो जो दुईटा हाउस अछन से माने भी सेशन रे नाहंती तो सेही केस रे ordinance can be promulgated to give effect to the bill pending before the parliament this is correct ordinance can be promulgated only in the matters related to ordinary bill finance bill not money bill wrong money bill case रे मध्य पास हेबो not in case of constitutional amendment bill मन रखि थांतो only constitutional amendment bill case रे ordinance पास हेई परिबो नाही तो ए अनुसार this is b टा wrong अछि because it is not money bill लिखिछि तो this is the wrong only a is correct 69 the minister of state shall hold the office during the pleasure of the state रो minister का governor जदि सेंटर हेतिले प्रेसिडेंट स्टेट रे हेतिले गवर्नर वेरी सिंपल ओके क्वेश्चन नंबर 70 ए पार्लियामेंटरी सिस्टम इज वन देखो द लास्ट क्वेश्चन रा रिपीटेशन अछि कि दिस इज कि आर्टिकल आपनकर कोन कहूची 74 कोन कहूची कि आपनकर आर्टिकल 74 कहूची कि पार्लियामेंट जो आपनकर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अछि इट इज रेस्पोंसिबल to parliament in general and lok sabha in particular that is apangar parliamentary system mon rakhi thantu very important question repetitive question achi eta बाकी features of the parliamentary system it will mention achi executive responsible to the legislature dual executive secrecy procedure leadership of the prime minister bicameral legislature you know नो फिक्स टेन्यूर ये सब जिनस आपनकर पार्लियामेंटरी सिस्टम रे मेंशन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ हाउस देखंतु ओके आपण
गोटे जिनस ध्यान रखा पड़ो कि क्वेश्चन पचार टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस ओके सो एडजर्नमेंट कौन ना आपण किछि टाइम पीरियड पई फॉर एग्जांपल 1 आवर पई जदि स्पीकर मीटिंग टाको एडजर्न करूचंती लोकसभा रो मीटिंग टाको 1 वीक पई हे गला 1 मंथ पई हे गला हाउवर द रीअसेंबली डेट कि आउ थरे नेक्स्ट आमे केबे असेंबल हवा से डेट टा जदि से मेंशन करूचंती ताको कहा जे एडजर्नमेंट देन एडजर्नमेंट साइन ए डाई माने कोन ना सेठी री एडजर्नमेंट हबो बट सेठी रीअसेंबली रो डेट टा मेंशन हबो नाही तो से केस रे जणा पड़िबो नै कि नेक्स्ट मीटिंग टा केबे हबो प्रोरोगेशन कोन ना प्रोरोगेशन माने होची कंप्लीट सेशन टा जो तीनटा सेशन होय ना आपनकर कि आपनकर बजट सेशन होय देन मानसून सेशन होय आपनकर विंटर सेशन होय तो से सेशन जो रहे से सेशन टा कंप्लीटली हाउस रो सेशन टा ही पूरा टर्मिनेट हे जिवो दैट इज कॉल्ड प्रोरोगेशन प्रोरोगे मन कथा तो साइनेड आए जदि पड़ी गला ताले किछि दिन भितरे ऑटोमेटिकली स्पीकर जो से प्रोरोगेट कर दियंती पूरा हाउस को प्रोरोगेट कर देथांती एंड लास्ट इज डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन किए करंती लोकसभा को प्रेसिडेंट करंती केंती करंती ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रे से डिसोल्यूट कर देई परिबे लोकसभा को Next question number 72. Which of the following funds established under the constitution is for the purpose of meeting of unforeseen expenditure? Contingency fund of India अभी डिस्कस करिथिले हमें corpus केते रहइबो केते टंका सबले सेठी मेंटेन हितवा दरकार ना 500 करोड़ मन के जानतो so this is contingency fund of India. Next question number 73. Which of the following qualification is compulsorily not required to become the member of state legislative assembly? State legislative assembly रो member हवार अछि आपन को MLA हवार अछि citizen हवा जरूरी yes must be a degree holder of the university जरूरी no sir educational qualification is not necessary आपन 10th पास करी कि भी MLA हे परिबे किंतु आपन को केते वर्ष हितबा दरकार 25 वर्ष हितबा दरकार he must not hold any office of profit this is also correct मन जानतु कि what are the मतलब criteria for disqualification of the member of the state legislative assembly MP किंबा state legislative assembly रो disqualification केते बेले हबो जद आइदर गुड एंटी डिफेक्शन लॉ अंडर भी से डिस्क्वालिफिकेशन हे परिबो जदि से सिटी इंडिया रो सिटीजनशिप छाडी दोची से केस रे मध्ये से डिस्क्वालिफिकेशन हे परिबो जदि से अनसाउंड माइंड पागल हे जाय अनसाउंड माइंड तो जदि ताको प्रूफ कर दिया जिवो ताहेले मध्ये से डिस्क्वालिफाई हे जे परिबो if he is an undischarged insolvent माने जदि से बैंकक्रप्ट हे जिवो undischarged insolvent से केस रे मध्ये से कोन हे जिवो ना आपनकर डिस्क्वालिफिकेशन हे जिवो और जदि से किछि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करूची से केस रे मध्ये से डिस्क्वालिफाई हे जिवो यस ओके एटी पूरा मेंशन कर दिया हिची आपण माने देखि दे परिबे अगेन So we will move to question number 74. Consider the following statement about speaker pro tem. Yes, speaker pro tem कोन देखंतु ना once जेते बेले न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा रो फर्स्ट मीटिंग हुए तो आपनकर पुराना स्पीकर जे ता पूर्व से तो रिजाइन दे देबे से वैकेट कर देबे सीट ता से केस रे आपनकर जो पूरा हाउस रो जे सब सीनियर मेंबर थिबे बहुत आइदर से आपनकर रूलिंग पार्टी रो हितांतु कि ऑपोजिशन पार्टी रो हितांतु जे सीनियर मेंबर थिबे तांकू टेम्पोररी पीरियड पई स्पीकर रो पोजीशन दिया जे और दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड स्पीकर प्रो टेम प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द लोकसभा एज द स्पीकर प्रो टेम दिस इज करेक्ट की अपॉइंट करंती ना प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस नो ओथ टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर प्रो यस तांको में किछ स्पेशल ओथ नाही तांको प्रेसिडेंट ही तांको ओथ दिले थांती yes this is correct and this is also correct speaker pro tem रो कामो कोन बेसिकली से बाकी जो मेंबर्स माने रहिबे असेंबली रो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रो सेमान को से ओथ देबे स्पीकर pro tem जी so the president himself administer oath to the speaker pro tem तो वन स्पीकर प्रो टेम रो काम सरीला देन मेंबर्स मा रूलिंग पार्टी रो जे मेंबर माने थिबे से माने निज निज भितरे गोटिए स्पीकर इलेक्ट करिवे आ ऑपोजिशन पार्टी जे थिबो से डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करिथांती यस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू
the state election commission is responsible for the appointment of mayor in municipal corporation, not state election commission. This is state legislative assembly. मन रखिथांतु. Next, Jilla Parishads are the highest tier of local government in urban areas, not in the urban areas, in rural areas. So neither 1 and 2 is correct. Option is D. Let's move to question number 76. Advocate General रो ऑफिस रो टर्म केते जेंति अटॉर्नी जनरल रो जेंति ऑफिस रो टर्म फिक्स नाही एडवोकेट जनरल रो मध्ये ऑफिस रो टर्म किछि फिक्स नाही. 77 आर्टिकल कहते हैं आर्टिकल 165 और अटॉर्नी जनरल कहते हैं आर्टिकल 76. Which of the following statements, which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president rule in the state? See, not necessarily the consequences, माने हेले भी भलो न भी ही पारे भी न ही पारे भी प्रेसिडेंट रूल लागले को जिंस हे भी पारे न भी पारे. डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यस हे पारे न भी पारे डिसोल्यूशन भी हे पारे न हेले कोन हबो ना सस्पेंड कर दे परिबे से मन प्रेसिडेंट से को सस्पेंड कर दे परिबे असेंबली को पूरा न हेले डिसोल्यूट कर दे परिबे. तो डिसोल्यूट हे पारे आइदर न हेले सस्पेंड हे परिबे. रिमूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज बाध्य एटा हबो सब बेले. तो डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज एटा मध्ये हेई पारे न हेई पारे नले सस्पेंड हेई पारे न हेई पारे. सो 1 and 3 जोटा दे आर नॉट द नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस. 1 and 3 कोटी अछि बी रे. सो आंसर इज बी. प्रेसिडेंट रूल इज आर्टिकल 356 आ प्रेसिडेंट रूल लागिले केते मंथ रे सेटा दुईटा हाउस रे पास हबा दरकार 2 मंथ्स रे मन रखिथांतु. प्रेसिडेंट रूल को हटेया पई किछि रेजोल्यूशन पास करियो पड़िबो कि नो रिवोक रो पावर ता कहा पाखरे अछि ओनली प्रेसिडेंट पाखरे मन रखिथांतु. पावर टू रिवोक द प्रेसिडेंट रूल इज विथ द प्रेसिडेंट आउ जोटा 2 मंथ्स दरकार टू पास विदिन 2 मंथ्स रे पास हबा दरकार बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. जदि से भीतर लोकसभा टा सेशन रे नथिबो ताहेले राज्यसभा से टाइम रे पास करिथिबो एवं कोन हबो ना इन द नेक्स्ट लोकसभा रो सेशन रे सेटा 30 दिन मध्ये रे ताको पास करिया को पड़िबो. ओके next go to question 78. Which of the following statements are correct about Lok Sabha? The constitution put limits on the size of the Lok Sabha. This is correct. Total kete seat अछि limit रे 550. Okay 550 रो बेसी सीट हे परिबो नाही. The size and shape of the parliamentary constituencies is determined by the election commission. No, size and shape are determined करे delimitation commission. Fast past the post system electoral system is followed. Yes. Speaker of the Lok Sabha does not have a casting vote in case of मन रखिथांतु फास्ट इंस्टेंस रे स्पीकर पाखरे वोट दबार अधिकार नाही. बट जो केस रे इक्वालिटी ऑफ वोट हबो माने टाई हबो टाई केस रे देई पारिबो. बट एठी डज नॉट कहछि तो दिस इज रॉन्ग दिस इज आल्सो रॉन्ग दिस इज राइट एंड दिस इज राइट. सो 1 and 3 ए. Let's move to question number 79. In how much time the proclamation of emergency must be approved by both the House of Parliament? National proclamation emergency माने national emergency pass हबो केते रे 1 month रे 2 month कोठी in case of president rules case रे. ठीक अछि. This is 1 month in case of national emergency. Original एटा मध्ये 2 months थिला जोडा कि 44th constitutional amendment act रे 1 month करि दिया हितला. Consider the following statement. The judges of high courts of the states are appointed by the President of India. This is correct. Judge of the high courts of the states can be removed from office by an impeachment motion passed by 2/3 majority of both the house of the parliament. This is also correct. The salaries and allowances of the judge of the high courts of the states are paid from the consolidated fund of not India, consolidated fund of the state, concerned state. जो state रो high court रो judge से स्टेट रो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो सेवन को सैलरीज दिया हबो मन रखिथांतो. बट पेंशन टा कहा दिया जाय कैन पेंशन टा दिया जाय फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रो. सो 1 and 2. Consider the following statement. The leader of the majority party of Lok Sabha is appointed by the president as the prime minister. This is correct. The prime minister distribute portfolios among the minister. को मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिया हबो कहा को एजुकेशन मिनिस्टर दिया हबो कहा को डिफेंस मिनिस्ट्री दिया जिवो. दैट इज डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंट करंती किए ना प्रेसिडेंट
डिसाइड किए करती पोर्टफोलियोटा ना प्राइम मिनिस्टर द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में बिकम ए प्राइम मिनिस्टर दिस इज करेक्ट एग्जांपल दे परिबे ना डॉक्टर मनमोहन सिंह से कोर्टर मेंबर थिले राज्यसभा रो so he also become a prime minister so both of the house of parliament member टा prime minister हेई परिबे so we'll move to question number 82 the gram sabha are see gram sabha जोटा अछि this is the direct democracy रो grassroots level रे direct democracy पई ग्राम सभा आपनकर रहुचे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कोन जोटी की मेंबर माने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करिवे इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे तो ग्राम सभा रो मेंबर किए ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द विलेज पंचायत आर द ग्राम सभा रो मेंबर ग्राम सभा रो काम कोन तो पंचायत रो वर्क को कोन करिवो ना इंस्पेक्ट करिवो कि ग्राम पंचायत रो काम केंती होउची एवं बहुत सारा ग्राम पंचायत रे जो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स आसीबो ताको केंती इंप्लीमेंट करा जिवो तार प्लानिंग मध्य ग्राम सभा करी थाई ओके who among the following holds the office during the pleasure of the president chief election commission na chief election commission को केंती रिमूव करिवे in the same manner and same ground as the judge of supreme court so no controller and auditor general na eta madhya nuho chairman of UPSC this is also not only governor of the state he is the agent of the center he holds the office during the pleasure of the president the pleasure of the president आउ के pleasure of the president रे hold office hold करंती ना attorney general हे गला आपन करो आउ के हे गला ना आपन करो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हे गले यूनियन मिनिस्टर्स हे गले जो से माने हे गले सब तो से माने सब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट तांको बाहर कर दे परिबे कोनोसी मुहूर्त रे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट देखा तो होन लगे सिविल सर्विस पर्सनल मध्ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हे गले प्राइम मिनिस्टर हे गला अटॉर्नी जनरल हे गला गवर्नर ऑफ द स्टेट्स हे गले दे एंजॉय प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट which of the following statements are correct with respect to नीति आयोग टा केबे फॉर्म में थिला ना जनवरी 19 कोटे 2015 जनवरी 1 रे फॉर्म में थिला नीति आयोग आफ्टर रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन इज इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नो इज इट ए स्टैट्यूटरी बॉडी नो so it's not a constitutional body neither a constitutional body nor a statutory body yes it is a think tank लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन पाई नीति आयोग ता थाए नीति आयोग रो चेयरमैन किए ना प्राइम मिनिस्टर मन रखि थांतु एवं नीति आयोग जोटा अछि नीति आयोग रे आपनकर चीफ मिनिस्टर माने तार मेंबर ही थांती नीति आयोग बहुत सारा आपनकर इंडेक्सेस व्यवहार करे क्लीन सिटी इंडेक्स बाहर करूची वाटर डिस्ट्रेस इंडेक्स बाहर करूची नीति आयोग सो ए सब इंडेक्स मध्ये नीति आयोग बाहर करूची तो 3 and 4 आपनकर हे गला 84 Consider the following statement in the election of for Lok Sabha or state assembly the winning candidate must get at least 50% of vote एंती किछि नाही मु बार-बार कहूची fast past the post election मन रखि थांतु according to the provision laid down in the constitution in India a Lok Sabha the speaker post goes to the majority party deputy speaker goes to the opposition this is correct वो 11th लोकसभा रु आगरु कोन थिला बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी रु थिले बट 11th लोकसभा रु जोटा स्पीकर जोटा अपॉइंट होथिले कोठु ना मेजॉरिटी पार्टी रु डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट होथिले फ्रॉम द ऑपोजिशन रु अच्छा जदि स्पीकर रिजाइन करिवे कहा को से लिखि कि देबे ना डेप्यूटी स्पीकर को मन रखि थांतो आउट जिंस डेप्यूटी स्पीकर विषय रे कि डेप्यूटी स्पीकर जी ही इज ऑटोमेटिक जदि से कोनोसी पार्लियामेंट्री कमिटी रो मेंबर हुअंती मन रखंतु जदि से कोनोसी पार्लियामेंट्री कमिटी रो मेंबर हुअंती ही इज ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी सो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ही जानती डेप्यूटी स्पीकर सो डी नाइदर अच्छा सॉरी it question कोन भूल हला देखंतु according to the provision laid down in the constitution so constitution एंती किछि provision नाही मन रखे दांतु this is a practice actually this is a practice developed in the 11th Lok Sabha that is why this is the wrong ए गोटे सेंटेंस पई सी बार-बार आपण हमें कहूचो कि ए जिंस इवन मो पई मध्ये लागू होची कि हम जेतबे क्वेश्चन देखुचु इन स्पेशली इन केस ऑफ पॉलिटी हमको प्रत्येक लाइन प्रत्येक सेंटेंस प्रत्येक वर्ड को ध्यान से देखिया पड़िबो
एटी हम टिके मु मिस कर देली कि दिस इज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो मु भाबली दिस इज करेक्ट, बट देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस नाइदर 1 and 2. दिस इज ओनली ए प्रैक्टिस डेवलप इन द 11th लोकसभा की स्पीकर जी रूलिंग पार्टी रू हेबे, डेप्यूटी स्पीकर जी आपनकर ऑपोजिशन पार्टी रू हेबे. ओके, who among the following ranks lowest in order of precedence? Order of precedence रे lowest, order of precedence रे starting रे किए रहबे ना president, second रे किए vice president मन रखि थांतु, 3 नंबर किए रहबे prime minister, 4 नंबर किए रहबे governor of the state रहबे, 5 नंबर रे किए रहबे ना former your president जे former president रहबे, 6 नंबर किए ना deputy prime minister रहबे, तो 7 नंबर रे जाके किए रहबे ना CJI chief justice of India and speaker रहबे, एवं आपनकर 8 नंबर रे किए रहबे ना यूनियन मिनिस्टर्स जी अछंती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर्स अछन से माने रहबे. 9 नंबर रे जाई कि आपनकर माने 9 नंबर प्रेसिडेंट्स रे कि आछंती होल्डर्स ऑफ द भारत रत्न डेकोरेशन. देखंतु एटी पूरा आपनको लिस्ट देछि, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन जाई कि आपनकर एठी 7 7 एटी 5 ए ताको मु 5 एंड 6 पढ देइथिली. तो से अनुसार जदि हम एंती कैलकुलेट करिबा देन 9th पोजीशन आछे आपनकर होल्डर ऑफ द भारत रत्न डेकोरेशन. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 87. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया सर्विस माने ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट हो आर्टिकल 312 थ्रू रे राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी रे जदि राज्यसभा पास कला से केस रे आपनकर एटी लिखाइ छी एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द होल ऑफ द हाउस, नो मन रखिथांतु दिस इज राज्य सभा passes a resolution by 2/3 majority of its member present and voting, this much only. ये टिके एक्स्ट्रा लिखाइ जे ठीक अछि, हम एतकी ही कंसीडर करिबा आर्टिकल 312 जार द्वारा कि हम गोटे ऑल इंडिया सर्विस गोटे न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करिया पई आर्टिकल 312 कहूची राज्य सभा मस्ट पास ए रिजोल्यूशन by 2/3 majority members present and voting. 87 सी एक्सप्लेनेशन करेक्ट अछि, बस आपन को एठी प्रिंटिंग मिस्टेक दिगे अछि कि एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द होल ऑफ द हाउस, दिस इज नॉट, एती काट दियंतु तो आंसर आपन को ठीक अछि. पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स इन, पब्लिक ऑर्डर कोड थिवो, दिस इज इन द स्टेट लिस्ट रे आपन को पब्लिक ऑर्डर इज इन द कनकरेंट लिस्ट रे अछि, सॉरी कनकरेंट लिस्ट रे अछि पब्लिक ऑर्डर. अच्छा, यूनियन लिस्ट रे केतेटा आइटम अछि ना 100 टा आइटम अछि आपन को, स्टेट लिस्ट रे केतेटा आइटम अछि ना 61 टा आइटम अछि आपन को, कनकरेंट लिस्ट रे टोटल केतेटा आइटम अछि ना 52 टा आइटम अछि. को शेड्यूल एटा ना 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल रे आपन को दिस इज ऑल 7th शेड्यूल टा कहार एसेंशियल फीचर्स ना फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पई पावर शेयरिंग जरूरी, जोटे कि अपन 7th शेड्यूल रे पावर शेयरिंग टा कराइछि एमंग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट. अच्छा, रेसिडुअरी पावर कहां सहित रहिता है, रेसिडुअरी पावर लाइज विथ द सेंटर, सबले मन रखि दांतु. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल डज नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द राज्य सभा, राज्य सभा रे अप्रूवल को केस रे लागे नाही, मन रखि दांतु दिस इज मनी बिल. मनी बिल रे ओनली लोकसभा रे सेट इंट्रोड्यूस हो, लोकसभा रे पास हो, राज्यसभा सिर्फ रेकमेंड करि परिबो. ऑर्डिनरी बिल को भी राज्यसभा रे परिबो, लोकसभा रे भी परिबो. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी बहुत लोकसभा कि राज्यसभा को भी जगह रे इनिशिएट अमेंडमेंट पास हे परिबो. दिस इज ओनली मनी बिल. नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 90. Consider the following statement regarding the transfer of judges. The president can transfer a judge from one high court to another after consulting with the governor of the state. No, after consulting with the chief justice of India. एवं कहा सहित ना चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ द टू स्टेट्स, जो स्टेट रो आउट स्टेट को जाउची, स्टेट रो हाई कोर्ट रो जज जो चीफ जस्टिस तांको सहित कंसल्ट करिवे एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित कंसल्ट करिवे. ओनली द judge who is transferred can challenge the arbitrariness of the transfer. Yes, this is correct. So only 2 is correct in this case. Very important, PESA Act 1996 extends the provision of Panchayat Part IX of the Constitution to the 5th schedule areas. This is correct. 5th schedule areas रे basically ग्राम सभा थ्रू रे ऑटोनोमस ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा होचे ग्राम सभा थ्रू रे
टू निजको ऑर्गेनाइज करिया पई से मानको दैट इज ऑन द 5th शेड्यूल एरियाज रे दिस इज करेक्ट second 22nd 72 constitutional amendment act gives shape to the three tier panchayat raj institution this is also correct so both 1 and 2 is correct no this is not 72 this is 73rd constitutional third 74th constitutional amendment act so this is 73rd constitutional amendment act तो सर neither 1 and 2 सिर्फ हबो नहीं this is only आपनकर 1 is correct होची 92 which of the following statement is incorrect regarding the jurisdiction of the district judge so the principal court of civil jurisdiction is the court of the district judge at district level this is correct it has both original and appellate jurisdiction yes district judge are both original and appellate jurisdiction achi district judge can transfer the case to additional district judge this is also correct the district judge cannot assign the administrative power among judicial officer this is wrong he can assign administrative power in fact मोर क्वेश्चन होची कि डिस्ट्रिक्ट जज जोटा अछि तंग अपॉइंट के करथांती ना गवर्नर मन रखितांतो के करथांती गवर्नर एवं आफ्टर कंसल्टिंग विथ द होम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आउ डिस्ट्रिक्ट जज हवा पई आपनकर क्राइटेरिया कोन ना आपनको 7 इयर्स you must be an advocate or a pleader हवा को पड़ियो कि मोर एडवोकेट हवा को पड़ियो 7 इयर्स चाहे you should not hold any गवर्नमेंट ऑफिस आपण होल्ड करि नथिबे किछि भी नेक्स्ट आउट कोन ना आपण को हाई कोर्ट रेकमेंड करिवो you must require the recommendation of the high court so these are the criteria next question number 93 consider the following statement the accounts of every cooperative society shall be audited within 1 year of the close of the financial year close हला परे अपन फाइनेंशियल ईयर केबे क्लोज होची ना 31st of March रे क्लोज होची तो क्लोज हला रो केते दिन परे अकाउंट्स ऑफ द एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड विदिन नॉट 1 ईयर विदिन 6 मंथ 6 मास भीतर ताकू ऑडिट करिया को पड़िबो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर दिस इज करेक्ट so only 2 is correct अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी को अमेंडमेंट 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जाउची 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू रे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टा डीपीएसपी रे ऐड करा जाइथिला मन रखिदांतु the power of the president to act upon the bill is termed as yes last test रे मध्ये आपण माने डिस्कस करिथिली कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जोटा जे वीटो पावर जो अछि प्रेसिडेंट रो तो केते प्रकार वीटो अछि ना एब्सोल्यूट वीटो अछि सस्पेंसिव वीटो अछि पॉकेट वीटो अछि एब्सोल्यूट वीटो कोन ना एब्सोल्यूट वीटो केस रे जो प्रेसिडेंट थांती ही डिड नॉट गिव हिज असेंट दियंती नाही विथहोल्ड हिज असेंट बेसिकली सस्पेंसिव वीटो कोन ना से बिल टा को रिटर्न कर दियंती फॉर रिकंसीडरेशन पई आ वंस रिकंसीडर हे कि बिल टा जेते बेला आसे तो ताकू से असेंट दबा पई बाध्य होवंती 3 नंबर होची आपनकर पॉकेट वीटो रे ना से असेंट दियंती ना विथहोल्ड करंती ना रिटर्न करंती सिंपली बिल को जेमती को सेमती रखी दियंती विदाउट गिविंग एनी साइन और विथहोल्ड किछि न करके सिंपल रखी दियंती भूली जानती तो बिल सेमती ही रही थाए दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू नॉट एक्ट अपॉन द बिल and not act upon the bill is pocket veto किछि करंती नाही दैट इज एक्ट किछि एक्ट करंती नाही दैट इज पॉकेट वीटो ओके मन रखथांतु सस्पेंसिव वीटो मनी बिल कैन नॉट बी सेंड इन सस्पेंसिव वीटो मनी बिलटा आपनकर सस्पेंसिव वीटो यूज हे परिबो नाही व्हाई बिकॉज़ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विथ द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही रेकमेंड करथांती तो प्रेसिडेंट पुनी कोन पई ताकू से रिटर्न करिवे नेक्स्ट होची आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केस रे कोनोसी भी वीटो काम आसीबो नाही इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट यस नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 95 जुडिशियल रिव्यू पर देखंतु इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आपन को केस रे कहा जिबा क्वेस भी मन रखि थांतु लास्ट टेस्ट रे म डिस्कस करी छी दिस इज एवं एटा होची आपनकर
मिनर्वा मिल्स केस जोडी कहला कि जुडिशियल रिव्यू इज द पास्ट मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 this is and city कहला this is part of the basic structure and can only be ousted by constitutional amendment wrong basic structure को आपण केबे मध्ये चेंज करि परिबे नाही amend करि परिबे नाही so this is only one is correct. So next question number 96. The president may either give or withhold his assent to money bill. Yes, either give his assent to money bill or withhold his assent. Return kari paribe nahi. Suspensive veto lagibo nahi. Just discuss kali. In the case of constitutional amendment bill, the president cannot return the bill or withhold it. Yes, president needs to sign the bill. मन रखिथांतु constitutional amendment bill माने the needs to sign the bill. So both the statements are correct. 96 gala 97 which ministry has recently introduced fresh visa category named Ayush visa. See Ayush visa कोन Ayush ministry कोन ना आपनकर आयुर्वेदिक अछि यूनानी अछि आपनकर जो आयुष मिनिस्ट्री अछि से अंडर रे आपनकर कोन ना आयुर्वेदिक अछि आपनकर यूनानी अछि सो ए सब जिंस जोटा आसुची सेटा को मिनिस्ट्री जोटा आयुष वीजा दोची कोन पई हेल्थ टूरिज्म पई कि बाहर लोक आसी कि फॉरेन लोक आसी कि इंडिया रे ट्रीटमेंट नहीं परिबे दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव स्पेशल पावर. अच्छा एक्सक्लूसिव और स्पेशल पावर माने एंती पावर जोटा कि सिर्फ राज्यसभा पाखरे थिबो. देखो अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी व्हेन लोकसभा इज नॉट डिसॉल्व. अच्छा जदि लोकसभा डिसॉल्व हे नाही से केस रे तो लोकसभा भी अप्रूव करिवो तो एटा कोन स्पेशल पावर के राज्यसभा रो ना. द क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ द स्टेट्स एटा आइदर हाउस रे सेटा इनिशिएट हे परिवो तो एटा किछि स्पेशल पावर नुहो. इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा दुई जण पार्टिसिपेट करंती तो एटा भी किछि स्पेशल पावर नो. ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट्स सब्जेक्ट रे सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट दिस इज स्पेशल पावर. स्टेट लिस्ट रे केतेडा अछि आपनकर 61 आइटम्स अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 आउ कोन स्पेशल पावर अछि देखंतु कि ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 एनफोर्समेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड. यस एनफोर्सिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड कहा जाउछि ना कि जदि इमरजेंसी आपनकर नेशनल इमरजेंसी आपनकर अछि तारे से केस रे लोकसभा जो डिसॉल्व अछि ताहले आपनकर लोकसभा न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा रो फर्स्ट मीटिंग रो 30 डेज भितरे लोकसभा ताको पास करिवो. Meanwhile, Rajya Sabha has already passed the resolution. So, set a special power. It alone can initiate a move for the removal of the vice president. Definitely, vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. So, it can only move the resolution for the removal of vice president. So, with the reference to corporate social responsibility, CSR, consider the following statement. The corporate social responsibility in India is governed under the Society Registration Act of 1860. Society Registration Act 1860 under which this is correct. India is the first country in the world to mandate CSR spending along with a framework to identify the potential CSR activities. This is also correct. केते परसेंट दिया होची ना 2% CSR करा जाए प्रॉफिट रो 2%. तो को एक्ट अंडर एटा अछि को फ्रेमवर्क अंडर ना कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 मन रखि थांतो कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 एक्सप्लेनेशन आई थिंक दिया हेची. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री. यस कंपनीज एक्ट जो अछि 2013 सेटरे आपन को केते परसेंट स्पेंड करिवो कंपनी 2% ता सोशल सेक्टर रिस्पांसिबिलिटी हिसाब रे से स्पेंड करिवो बेसिकली. So corporate social responsibility 2% सोले मन रखि थांतु. Next, consider the following statement. Reservation for scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes is referred to the vertical reservation. Definitely, reservation of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes is referred to as vertical reservation. Yes, this is
करेक्ट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सी कास्ट हायरार्की रहउची ना कास्ट हायरार्की केंती थाए कि ऊपर ब्राह्मण देन आपनकर माने आई मीन जनरल देन ओबीसी देन एससी देन एसटी जेंती रहउची ये कास्ट हायरार्की अनुसार ही आपनकर वर्टिकल रिजर्वेशन दिया हेची देन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो ओबीसी को 27% दिया हेची या को एससीज को दिया हेची देन एसटीज को दिया हेची तो से दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन horizontal reservation is an intersectional approach that is provided within the vertical reservation category see देखो horizontal reservation कौन ना आपनकर vertical reservation ऊपर तळको आछि फर्स्ट सबटर बेसी दिया हेछि को मान को आपनकर दिया हेछि ओबीसीज मान को ओबीसीज मानकर अछि देन एससीज अछि एसटीज अछि देन आपनकर दिस इज कॉल्ड आपनकर vertical reservation हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कोन ना विद इन ए ग्रुप एससी ग्रुप रे मध्ये आपन को वुमेन रिजर्वेशन दिया होचे सेम एससी ग्रुप रे आपन विद इन ए ग्रुप रे जो रिजर्वेशन वुमेन डिसेबल लोगों को दिया होचे रिजर्वेशन दिया होची वुमेन को रिजर्वेशन दिया होची तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जोटा होची आपन को वर्टिकल रिजर्वेशन अंडर आपन को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन टा दिया जाऊ अछि सो दिस इज बोथ 1 and 2 इज करेक्ट तो ऑप्शन इज सी तो पूरा आपनकर 100 टा क्वेश्चन खत्म हो जाइछि माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू बार बार प्रैक्टिस करंतु छोटे मोटे जदी भूल रहूची ताको करेक्ट करि नियंतु बार बार टेस्ट दियंतु सी बहुत सारा पिला टेस्ट दउ नहंती प्रैक्टिस करू नहंती माय सजेशन टू यू ऑल ऑफ यू इज कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस करले ही आपन कोनोसी भी एग्जाम रे सक्सीड हेई परिबे सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्रैक्टिस पढंतु थोरोली पढंतु सिंसियरली पढंतु एवं exam diyantu with this we must conclude this session we will meet in the third test analysis thank you very much